Gurubhyo Namah. A very warm welcome to the second session of Weekend with Wisdom with Dr. Satyan Sharma ji. Let me begin with a small prayer. Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Sarvamangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Trayambake Gauri Narayani Namostute Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Very warm welcome to you again, Dr. Satyan. Thank you for making time for this program. Viewers, before we begin, just a brief introduction to Dr. Satyan ji. Dr. Satyan did his master's and doctorate from the Department of Samskrita at Punjab University, Chandigarh. He has been teaching students of MA Sanskrit at the university for more than 5 years now. His area of specialization is Darshana Shastra and as well as Dharma Shastra. And he has been serving as assistant professor at the department since 2021. He was recently awarded his PhD for his thesis on a 13th century rare Samskrita text titled Tarkasangraha, authored by Anandagyana, which is basically a refutation of the Vaisheshika Darshana. And since few years, he has been studying Dharma Shastra along with the traditional commentaries to understand the variety of interpretations and applications of them in the society, in the past and present. Today, Dr. Satyan will be continuing his discussion on Dharma, Jnana and Moksha. Yesterday, he gave a wonderful introduction to the Dharma portion, especially the definition, the sources, as well as how the dharmic vision, the world view, is distinct from a modern vision, where in modernity we strive for independence and we strive to pursue our desires in an unrestrained manner, because the true definition of independence is today is pursuing desires, artha and kama, in unrestrained manner, which of course can only lead to disaster eventually. In contrast to that, the dharmic vision is paraskara, willingly submitting ourselves to a higher vision, to a higher revelation, to a higher teaching in the form of Shruti and Smriti. So with this very brief introduction, I open the floor. Please go ahead, Dr. Satyan, start your session. ओम कोलाहलः प्रमाणानां वादानां वादिनामपि यत्राप्नोति परां शान्तिं शङ्करं तं नमाम्यहम्। शङ्को वृषभ इत्यर्थो वृषभो धर्म इत्यपि तं रान्तं शङ्करं धर्मज्ञानायाहं समाश्रये। नमः शिवाय। So I'm sharing the presentation. मैं शेयर कर देता हूँ। मेरी प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रही है? Yes, go ahead. ठीक है जी। आज धर्म, ज्ञान और मोक्ष, ये जो दो व्याख्यानों का एक कार्यक्रम है, आज उसका दूसरा और आखिरी भाग चल रहा है। कल के सेशन में, कल के व्याख्यान में धर्म के बारे में, धर्म क्या है और शास्त्रीय रूप में धर्म क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके प्रकार क्या हैं और उसकी मौलिक अवधारणा क्या है। धारणात् धर्म का जो शब्द, जो एक निर्वचन बहुत प्रसिद्ध है, उसमें धर्म किसे धारण करता है इत्यादि सभी कुछ पक्षों पे हमने चर्चा की थी। और ये एक जो दो प्रकार का मुख्य धर्म है, सामान्य और विशेष, जो धर्मशास्त्र के अनुसार दो प्रकार का धर्म है, उसमें सामान्य धर्मों में भी जो इंद्रिय निग्रह है उस पर धर्मशास्त्र बहुत बल देते हैं और
ये ऐसा धर्म है जिसका पालन करना सबसे कठिन है। ये हम सबका आम तौर पर सबका एक अनुभव का विषय है कि इंद्रियों को नियंत्रण में लाना काफी कठिन होता है। उसके उपाय के रूप में महर्षि मनु ने मनुस्मृति के अंदर ज्ञान को एक उपाय के रूप में बताया है। और वो ज्ञान वाला जो उपाय है, इसका स्वरूप क्या है और इसमें जो दर्शन शास्त्र है किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं, आज उस पर कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो कल हमने किया था, कल के सेशन में जो डिस्कस हुआ था उसके बारे में एक बार पुनर्आलोकन कर लेते हैं। एक तो धर्म क्या है? अभ्युदय निश्रेयसे धारयति इति धर्म। धर्म क्या है? जो अभ्युदय और निश्रेयस को धारण करता है। अभ्युदय है इस लोक या परलोक में जो कीर्ति या सुख की प्राप्ति है, और निश्रेयस है मोक्ष। वैशेषिक सूत्र में भी ऐसा ही एक बात कही गई है, जिसकी व्याख्या में थोड़ा भेद है, पर मूल अवधारणा वही है। जो शास्त्रिक इसके या शास्त्रीय शब्द हैं जो धर्म से जुड़े हैं, वो हैं विधि और प्रतिषेध। विधि कहा जाता है वो धर्म का भाग जिसमें क्या करना है ये बताया जाता है, और निषेध वो है या प्रतिषेध वो है जिसे न करने का उपदेश दिया जाता है। इनको मिला करके कि जो कहा गया है उसे करना, जो मना किया गया है करने को उसे न करना, ये कुल मिलाकर के धर्म के शब्द से इसका कथन किया जाता है। धर्म के प्रकार फिर हमने देखे थे कि मुख्य रूप से 5 प्रकार का धर्म है। वर्ण धर्म, और ये अवधारणा है, ये मुख्य रूप से वर्णाश्रम धर्म से डायरेक्टली संबंधित है, सीधे उससे संबंधित है। जो दूसरा प्रकार है वो इसके अलावा जो धर्म है उनके बारे में है। तो वर्ण धर्म वो है जो किसी एक वर्ण या जाति को ही आश्रय बना करके उस जाति के या उस वर्ण के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के ऊपर जिसे लागू किया जाता है उसे वर्ण धर्म कहते हैं। जैसे ब्राह्मणों न हंतव्य, ब्राह्मण को न मारा जाए, या ब्राह्मणे न सुरानपे, या ब्राह्मण मदिरा पान न करे, इत्यादि जो ये हैं, ये वर्ण धर्म के अंतर्गत आते हैं। इसमें किस आश्रम में है, किस अवस्था में है, उसके बारे में कोई चर्चा या कोई विशेषण नहीं दिया जाता, ये सीधा सीधा वर्ण पर है। फिर आश्रम धर्म है जिसमें किसी एक वर्ण का वहां उद्देश्य ना होकर के, उसका कथन ना होकर के, उस एक आश्रम में जो भी है उसके ऊपर वो धर्म लागू होते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य का जो आश्रम है उसमें जब प्रवेश किया जाता है तो जितने भी ब्रह्मचारी हैं वो किसी भी वर्ण के हो सकते हैं, उन पर कुछ धर्म लागू होते हैं, भिक्षाचरण इत्यादि। वर्णाश्रम धर्म, जब वर्ण और आश्रम दोनों को आधार बना करके कोई धर्म का उपदेश किया जाता है तो तब उसको वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है। जैसे यहाँ पर कहा गया कि जब क्षत्रिय जो है उसका उपनयन होगा तो क्षत्रिय ब्रह्मचारी का विशेष धर्म क्या है, अलग से। एक तो भिक्षाचरण आदि सबके हो गए, सभी ब्रह्मचारियों के, तो उसका। फिर ब्राह्मण जो उपनीत बालक है उसका क्या धर्म होगा, वैश्य उपनीत बालक है उसका क्या धर्म होगा, वो सब यहाँ कहा गया है। फिर है नैमित्तिक धर्म, है किसी निमित्त के कारण से होने वाले। जैसे यहाँ प्रायश्चित्त का उदाहरण दिया गया है, अन्य भी होते हैं, यहाँ उदाहरण प्रायश्चित्त का है। प्रायश्चित्त कब किए जाते हैं? जब कोई ऐसा कार्य हमसे हो जाए जिसका निषेध किया गया था शास्त्र में, और हमसे जाने अनजाने हो गया। अब उससे जो पाप हमें प्राप्त हुआ है उसको हटाने के लिए ये प्रायश्चित्त कर्म किए जाते हैं, उस निमित्त से किए जाते हैं, अतः नैमित्तिक धर्म कहलाता है। फिर है गुण धर्म। गुण धर्म है एक वर्ण में, एक आश्रम में रहते हुए सभी से अलग करने वाला एक ऐसा कोई गुण किसी में आ गया जिसके कारण से उसे अलग धर्मों की प्राप्ति होगी। जैसे एक क्षत्रिय का जब अभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है, तब राजा बनने पर जो उसके राजधर्म उसके ऊपर आते हैं वो गुण धर्म कहलाएंगे। इसके बाद प्रकारांतर से जो 5 धर्म और बनते हैं, एक खास देश के अंदर होने वाला जो धर्म है वो देश धर्म कहलाएगा, ये अन्य स्थानों पर नहीं होगा। फिर जाति धर्म है किसी विशेष जाति के अनुसार होने वाला। कुल धर्म है किसी एक कुल विशेष में जितने भी उस कुल के सदस्य हैं वो इस धर्म का पालन करेंगे, वहां पर यह धर्म कुल धर्म कहलाता है। फिर अशास्त्रीय विधि से होने वाले धर्म को पाषंड धर्म या पाखंड धर्म कहा जाता है। फिर श्रेणी धर्म है, जो भी यहाँ पर जैसा आर्टिजन्स हैं, शिल्पकार हैं, कर्मकार और भी हैं, उन सब का जो एक मिल करके गिल्ड बनता है या एक समूह बनता है, उनके जो धर्म है, जैसे यहाँ वणिजों का धर्म यहाँ उदाहरण के रूप में दिया गया है,
तो जितने वणिक या वाणिज्य करने वाले लोग हैं, उनका आपस का जो धर्म है, वो श्रेणी धर्म ये कहलाता है। फिर मैंने कहा था कि धर्म के मुख्य 2 प्रकार भी ये आते हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य है जो मनुष्य मात्र कर सकता है, स्त्री, पुरुष या कोई भी मनुष्य है, कहीं का भी है, वो इन धर्मों का अनुष्ठान कर सकता है। अहिंसा, अस्तेय आदि धर्म है। फिर विशेष धर्म है, ये आते हैं आपके वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म इत्यादि, वो विशेष धर्म हो जाते हैं। फिर है विशेष धर्मों में भी 2 प्रकार हैं। एक तब जब आपकी परिस्थितियां हैं वो सामान्य हैं, तब आप जब उन धर्मों का पालन करेंगे, तब आप पर अनापतकालीन धर्म या जो विशेष धर्मों की डिफ़ॉल्ट अवस्था है, जो मौलिक अवस्था है, वो आपको उसका पालन करना होगा, वो अनापतकालीन धर्म है। तो जितने विशेष धर्म हैं, वो सीधे-सीधे अनापतकालीन धर्म के अंदर आ जाते हैं। और इनमें वृत्तियाँ कि आप कौन-सी आजीविका स्वीकार करेंगे, वो भी इसके हिसाब से उसको नियत किया जाता है। फिर आपातकालीन धर्म, जब ऐसी परिस्थितियां न हों कि आप उन विशेष धर्मों का यथाविधि पालन कर सकें, तब आपातकालीन धर्मों का विधान और आपातकालीन वृत्तियों का, आजीविकाओं का विधान किया गया है। और धर्म के प्रमाण के रूप में क्यों इसके प्रमाण हमें अलग-अलग किस्म से चाहिए? हम अपने आप से क्यों नहीं पहचान सकते? क्योंकि जो धर्म का विषय है, ये इंद्रियों से परे का विषय है। ये क्रिया करने से ये फल उत्पन्न होगा, इसको हम साक्षात रूप से देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, इसीलिए हमें शास्त्रों का प्रमाण या शास्त्र के ज्ञाताओं का प्रमाण मानना पड़ेगा। और कुछ एक विषयों में हमें भी छूट है कि हम उसे स्वयं अपने अंतरात्मा की जो आवाज़ है उससे पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, एक तो वेद है, संपूर्ण वेद सभी शाखाओं से सहित जितना वेद है, वो प्रमाण है। फिर उसके बाद जो स्मृति और शील हैं, वेद के ज्ञाता जो मनु आदि ऋषि हैं, मनु, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ इत्यादि, इनकी जो स्मृतियां हैं, वो भी धर्म में प्रमाण हैं। और इनके शील जो स्वभाव इत्यादि हैं, वो भी इसमें प्रमाण हैं। और आचार, जो इनकी क्रियाएं हैं, जो आचरण है, वो भी इसमें प्रमाण है। साथ में ही आत्मा की तुष्टि, इन्हीं जो साधु पुरुष हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो विद्वान हैं, शिष्ट हैं, इनका आत्मा की तृप्ति जिन विषयों में होती है, जिनके बारे में अन्य स्थानों पर कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन वहां पर एक विकल्प दिए गए हैं या कुछ नहीं कहा गया है, वहां पर प्रमाण के रूप में इनकी अंतरात्मा क्या कहती है, उसे भी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया। जो आप इतिहास पुराण आदि में जब पढ़ेंगे, वहां पर भी इन बातों का उल्लेख आता है कि बिल्कुल जब परिस्थिति सामने आ गई, उसका कहीं उल्लेख नहीं है, तो किस प्रकार से उन्होंने अपने बुद्धि बल से, तपोबल से, किस प्रकार से धर्म के तत्व को उसकी रक्षा करते हुए उस परिस्थिति से वो बाहर आए। वहाँ जो उन्होंने निर्णय लिए हैं, उनको बहुत स्थानों पर स्मृतियों के अंदर भी उल्लेख उनका किया गया है, सूक्ष्म धर्मों के रूप में या प्राण रक्षा आदि धर्मों के रूप में। याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी ऐसा ही एक उदाहरण दिया गया है। और जो फल कि हमें ये धर्म का पालन करना क्यों है? पहली बात, ये शास्त्र का आदेश है और शास्त्र का आदेश जो है वो हमारे कल्याण के लिए है। मुख्य रूप से जब भी हम धर्म शास्त्रों का अर्थ करते हैं, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि धर्म शास्त्र का जो उद्देश्य है, वो हम जो प्रजा हैं ईश्वर की, उस समस्त प्रजा का कल्याण है। तो जैसे मनुष्यों को लेकर के धर्म लिखे गए हैं, तो उसमें है कि मनुष्यों का जो किसी भी जाति से हो, वर्ण से हो, लिंग से हो, सबका कल्याण उसमें उसकी इच्छा की गई है। तो कल्याण प्रदान करने के लिए वो आदेश दिए गए हैं। किस आधार पे? वेदों के आधार पे। तो मुख्य प्रमाण जो है, परम प्रमाण है धर्म में, वो श्रुति है। उसके साथ में मिलकर के स्मृति भी इसमें प्रमाण के रूप में काम करती है। तो इससे क्या होता है, जो मनुस्मृति में दूसरे अध्याय में कहा गया है कि श्रुति और स्मृति में जो धर्म बताया गया है, उसका अनुष्ठान करने से इस लोक में तो कीर्ति प्राप्त होती है, यश प्राप्त होता है, आपका अच्छा स्थान बनता है। साथ ही साथ प्रेत्य, जब आपकी मृत्यु हो जाए, तो फिर आपको अनुत्तम सुख की, यहाँ पर अनुत्तम सुख आमतौर पे मोक्ष से उसका अर्थ लेते हैं कि मोक्ष की भी प्राप्ति या फिर स्वर्ग आदि जो लोक हैं उनकी प्राप्ति बताई गई। साथ ही जितने ये कर्मकांड हैं, अगले ही जो श्लोक यहाँ पर लिखा है उसके अंदर जो जितने भी कर्मकांड हैं, जितनी भी क्रियाएं, अनुष्ठान बताए गए हैं, जिस के लिए जो उन सब का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनाना हमें। तो यहाँ स्वाध्याय का, व्रत का, होम का, सबका, महायज्ञ, यज्ञ इत्यादि सबका उदाहरण दिया गया है
कि इन सब से ब्राह्मीयम क्रियते थे, जो शरीर है या जो आत्मा है इसे ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है। तो मुख्य लक्ष्य है जिसको हम परम पुरुषार्थ कहते हैं वो मोक्ष है। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। ये वैसा लक्ष्य है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। जैसे हम कहें कि हम एक अनजान पर्वत की ओर आरोहण कर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। हमें नहीं पता पर्वत लगता कैसा है, लेकिन हमने सुना है उसके बारे में। तो फिर भी वो पृथ्वी पर है, वो इंद्रियों से उसका ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन ये ऐसा लक्ष्य है जिसका इंद्रियों से कोई ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसको शास्त्र प्रमाण से ही इसको माना जाता है, और जो शास्त्र के ज्ञाता हैं उनके प्रमाण से इसे माना जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर क्योंकि ये ऐसा है, तो इसमें धर्मशास्त्र किस प्रकार से एक प्रोसेस या एक प्रकार किस प्रकार से बनाता है, उस पर हम विश्वास रख करके इन चीज़ों का अनुष्ठान करते हैं। तो यहाँ पर भी जो सभी कर्म कांड हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब छोड़-छाड़ के ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म प्राप्ति से पहले ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता भी हमें पानी होती है। तो उसके लिए हमें जितने जो-जो अनुष्ठान बताए हैं, जिस अवस्था में हमें अपने यथाशक्ति हमें उसका अनुष्ठान करना चाहिए। और ऐसे ही इंद्रियादि के इंद्रियाणाम निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च अहिंसया च भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते। यहाँ भी मोक्ष प्राप्ति की योग्यता अथवा ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता के और भी प्रकार दिए गए हैं कि इंद्रिय निग्रह से, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में लाने से, राग और द्वेष को हटाने से, और प्राणियों के प्रति अहिंसक होने से। तो उससे क्या होता है, अमृतत्व के योग्य बनते हैं, मोक्ष के योग्य बनते हैं, या ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनते हैं। तो उसका भी यहाँ वर्णन किया गया है। फिर सामान्य धर्म, इस पर ही मेरा जो अधिक बल है, जो मेरा केंद्र है, जिसके आसपास मैंने ये प्रेजेंटेशन या व्याख्यान रचा है। तो यहाँ पर एक तो है मनुष्य मात्र के द्वारा जिनका पालन किया जाना चाहिए, वो सामान्य धर्म है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच और इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी जो हैं वो तभी संभव है अच्छे से उनका अनुष्ठान कर पाना जब इंद्रिय निग्रह अच्छे से हो पाएगा। और इसी को महर्षि मनु ने ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच और इंद्रिय निग्रह को प्राणी मात्र का, मनुष्य मात्र का संक्षेपतः धर्म बताया है कि ये एक संक्षेप रूप है समस्त धर्म का। इसके ऊपर, इस सामान्य धर्म के अनुष्ठान के ऊपर विशेष धर्मों की जो इमारत है उसे बनाया जाता है। अगर ये नहीं होगा तो ऊपर से वो डोल जाएगा। तभी जब हम कोई भी मकान या महल तैयार करते हैं, पहले उसकी नींव अच्छे बनाई जाती है, अच्छे से उसको भरा जाता है, अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तभी उसके ऊपर जो खड़ा होगा, चाहे वो छोटा बड़ा हो, वो इमारत अच्छे से टिकती है और लंबे समय तक चलती है। फिर है द्विज मात्रों के द्वारा पालन किए जाने वाले सामान्य धर्म, उसमें भी इंद्रिय निग्रह का कथन किया गया है। तो दोनों ही, चाहे वो मनुष्य मात्र हो या कोई द्विज हो, द्विज वो जिनका उपनयन संस्कार होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनमें से। तो ये जो दो हैं, इन दोनों में ही इंद्रिय निग्रह को एक धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है। और सामान्य का अर्थ हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए कि हाँ सामान्य सी बात है। सामान्य का अर्थ यह है कि ये तो करना ही करना है, विशेष धर्म का पालन तो करना है, लेकिन उससे पहले उसके आधार के रूप में हमें सामान्य धर्म उसके साथ जोड़कर ही इस्तेमाल करना है। ठीक, केवल सामान्य धर्म का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन केवल विशेष धर्म का अगर प्रयोग करेंगे, सामान्य का नहीं करेंगे, तो उससे क्या होता है, उसको भी आगे बताया गया है कि वो निष्फल हो जाते हैं विशेष धर्म। सामान्य धर्म में जब याज्ञवल्क्य की स्मृति के एक हिस्से में अपरार्क, जो शिलाहार के राजा थे, उन्होंने एक व्याख्या लिखी है। वहां पर उन्होंने व्यास वचन या महाभारत से एक वचन उद्धृत किया है, जहां पर आत्मज्ञान को भी सामान्य धर्म में गिना गया है, जिसको हम आगे जोड़ेंगे। जैसे मैंने कल बताया सिद्धांत के रूप में कि बिना सामान्य धर्म का पालन किए यदि विशेष धर्मों का पालन किया जाता है, केवल विशेष धर्मों का, तो वो निष्फल हो जाता है। पहली बात तो विशेष धर्म काफी कठिन हो जाते हैं, तो उनका पालन करने के लिए पहले ही आपको कुछ इंद्रिय बल, कुछ शारीरिक बल, कुछ मानसिक बल चाहिए। तो यदि तब भी उसको जिस भी प्रकार से किया जाता है तो वो निष्फल हो सकते हैं। जैसा कि मनु महर्षि ने स्वयं ही कह दिया है कि जिसका मन या जिसकी इंद्रियां विषयों में आसक्त हैं, उसके द्वारा किए गए जो ये विशेष धर्म है, वेदाध्ययन हुआ, यज्ञ हुए, नियमों का पालन है, जो बताए जाते हैं शास्त्रों के अंदर, और तप इत्यादि हैं, सब के सब निष्फल हो जाते हैं, वो सिद्ध नहीं हो पाते। इसीलिए इंद्रिय जो जो सामान्य धर्म है, और उनमें भी विशेषकर जो इंद्रिय निग्रह है, उसकी इतनी महिमा है कि उसका पालन करने से ही ये समस्त धर्मों का फल प्राप्त होना संभव होता है, अन्यथा नहीं। और जैसे मैंने कल भी
एक सामान्य रूप से इशारा किया था कि इंद्रिय निग्रह की क्या आवश्यकता है, इसको बार बार आपको मनुस्मृति में आपको ये बात बार बार दिखती है। जैसे कि इंद्रियों के प्रसंग से, ये पहला श्लोक का अनुवाद कर रहा हूं, इंद्रियों के प्रसंग से या इंद्रियों में संलग्न बहुत ज्यादा होने से मनुष्य निश्चित रूप से दोष को प्राप्त करता है, और जब उन्हें ही संयमित कर लेता है तो उसे सिद्धि या उसको पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है यथोचित ढंग से। और ऐसे ही कि जो सभी इंद्रियां हैं हमारी, कुल मिलाकर 11 हैं, इनमें से एक भी इंद्रिय अगर क्षीण होती है, इसको वो नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो उसकी जो मनुष्य है उसकी प्रज्ञा या उसकी जो विवेक बुद्धि है वही निकल जाती है, वो समाप्त हो जाती है। तो इतना इसका महत्व है कि बुद्धि का सीधा संबंध इंद्रियों से है और इंद्रिय निग्रह से है। और जैसे आगे पीछे मैंने एक श्लोक कहा था इंद्रियाणाम निरोधेन वाला, जिससे मोक्ष के योग्य बनने की बात आई है या अमृतत्व के योग्य बनने की बात आई है, वहां पर भी इंद्रिय का निरोध, आप ध्यान से देखें कि इंद्रिय का निरोध होने से ही, इंद्रियों का निग्रह होने से ही राग और द्वेष का क्षय हो सकता है। अगर तो हम इंद्रियों के विषयों में इतने जुड़ रखे हैं, संलग्न हैं, कि हमें उनके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें लग रहा है इनको भोग कर ही इनसे मुक्ति मिल सकती है, इनको भोगना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है और कोई मार्ग नहीं है, तो ना राग द्वेष का क्षय हो सकता है, ना अहिंसा ही हो सकती है। अहिंसा क्यों होती है? अहिंसा इसलिए क्योंकि आपका राग द्वेष जो है वो आपके नियंत्रण में है, आपको व्यर्थ क्रोध नहीं आ रहा है, आप किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना नहीं रख रहे हैं, आदि ये सब जो चीजें हैं ये इंद्रिय निग्रह पर ही केंद्रित है, इसीलिए बार बार इसका वर्णन है। साथ ही जब हमने नैमित्तिक धर्म में प्रायश्चित का नाम लिया था, प्रायश्चित का भागी बनने के लिए प्रायश्चित क्यों किए जाते हैं? जाने अनजाने में जो पाप कर्म हो गया, जिससे पाप को, ऐसा कर्म जो निषिद्ध है, जिससे पाप की प्राप्ति हो गई है, उसको करने के बाद उस पाप को निवृत्त करने के लिए, उस पाप को हटाने के लिए जो कर्म किया जाता है उसे प्रायश्चित कहते हैं। इसमें विहित कर्म को न करना, जिसका विधान किया गया है शास्त्र में, आप कीजिए, इसको न करना, इससे भी पाप लगता है, तब प्रायश्चित करना पड़ता है। निंदित कर्म या प्रतिषिद्ध कर्म है, जो मना किया गया है करने को, उसे करने पर भी पाप लगता है, प्रायश्चित का अनुष्ठान करना पड़ता है। और तीसरी कंडीशन है, इंद्रिय के विषयों में जो बहुत संलग्न कोई हो जाए वो भी प्रायश्चित का भागी बनता है, उसे भी पाप लगता है, उसे प्रायश्चित करना पड़ता है। तो एक तरफ इतने सारे कर्म जिन्हें करना है नहीं करना, और एक तरफ सीधे सीधे इंद्रियों का नियंत्रण से बाहर जाना या इंद्रियों के विषयों में बिल्कुल संलग्न हो जाना, उसे भी प्रायश्चित के अधिकार का आधार माना गया है। साथ ही साथ में एक और चीज जो बहुत आवश्यक है, गृहस्थ धर्म में प्रवेश बहुत सामान्य रूप से कर लिया जाता है कि हाँ जी, विवाह पाणी ग्रहण संस्कार इत्यादि करके हम गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं। वहां पर भी महर्षि मनु ने एक बहुत आवश्यक बात कही है कि उससे कहा है कि ये दुर्बल इंद्रियों, जो जिनकी इंद्रियां दुर्बल हैं, दुर्बल इंद्रिय या असंयत इंद्रिय हैं, जिनकी इंद्रियां उनके संयम में या उनके नियंत्रण में नहीं है, गृहस्थाश्रम उनके द्वारा धारण करने योग्य नहीं है, या वो गृहस्थाश्रम के योग्य नहीं। तो आपका गृहस्थाश्रम जो सभी आश्रमों का आधार है, जो समस्त धार्मिक अनुष्ठानों का और धर्म के वातावरण का आधार है, उसमें ही प्रवेश जो है वो आप यदि किसी मनुष्य की इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं आ पा रही हैं, वो दुर्बल इंद्रिय है, तो उसका गृहस्थाश्रम में प्रवेश भी यूं कहें कि वो उसका अनधिकारी है, अधिकारी नहीं है। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि इंद्रिय निग्रह केवल आपके अपने कल्याण के लिए नहीं, पूरे समाज के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए इंद्रिय निग्रह सबसे आवश्यक सामान्य धर्मों में मैंने इसको माना है, और जो महर्षि मनु इत्यादि के अभिप्राय से भी ज्ञात होता है। हाँ, इसके बाद मनुस्मृति में जब ये बात आई कि इंद्रियों को संभाल करके रखना चाहिए, इंद्रियों को नियंत्रण में करके रखना चाहिए, तो वहां पर एक सम्यक दर्शन शब्द का प्रयोग आया है। सम्यक दर्शन का ये अर्थ है सही दर्शन। सही दर्शन का यहाँ पर केवल देखने से अर्थ नहीं है, यहाँ पर अर्थ है एक दृष्टि जो ज्ञान की दृष्टि है। जैसे हम यूं कहें कि
हम संसार में विचरण करते हैं, अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन किस दृष्टिकोण से चीजों को देख रहे हैं, किस दृष्टिकोण से हम गणनाएं करके अपनी क्रियाएं, अपनी प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, ये उस पर निर्भर करता है कि हमारी क्रियाएं किस प्रकार से होंगी और हमें पाप प्राप्त होगा कि हमें पुण्य प्राप्त होगा, या हम कहीं बीच में लटकेंगे, या हमारा क्या गति होगी या दुर्गति होगी, वो उस पर निर्भर करता है। इसी कारण से हमारे यहाँ पर ज्ञान को केवल और केवल एक बौद्धिक व्यायाम न मान करके, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज न मान करके, उसे धर्म का अंग माना गया है कि आप ज्ञान प्राप्त कीजिए ताकि आप धर्म का सही से अनुष्ठान कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको धर्म के कुछ मुख्य बिंदु न पता हो और जब तक आपकी दृष्टि ही दूषित हो, तब तक धर्म का अनुष्ठान कर पाना, तब तक अपने आप को नियंत्रण में रख पाना, और अपने आप से यहाँ पर आशय है अपने शरीर को, इंद्रियों को नियंत्रण में रख पाना, उनका यथोचित ढंग से भोग करना। भोग को धर्मशास्त्र बुरा नहीं मानते। इसीलिए महर्षि मनु ने, जो कल के सेशन में मैंने एक उनका श्लोक उद्धृत किया था, वहां उन्होंने कहा था कि इंद्रियों का नियंत्रण यदि आप करना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि इंद्रियों का प्रयोग अगर मैं बंद कर दूं तो उसका नियंत्रण हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी का हो जाए, लेकिन ये सामान्य रूप से नहीं हो सकता। प्रायः आप इंद्रियों को दबाएंगे, वो फिर से उठ खड़ी होंगी, वो फिर से अपना अपना काम पहले से ज्यादा बलपूर्वक करेंगी। इसी कारण से यहाँ पर जो ज्ञान को एक उपाय के रूप में रखा गया, और वहीं पर मनु महर्षि ने भी एक टेम्पलेट के रूप में, या एक क्या कहें, एक परिकल्पना के रूप में, या एक आउटलाइन के रूप में यहाँ पर हमें दिया है, वो है सम्यक दर्शन, जिससे हमें एक दृष्टिकोण मिलेगा कि हम जिन विषयों के प्रति इतने दौड़ भाग कर रहे हैं, यद्यपि हम अच्छे प्रवचन सुने, यद्यपि हम शास्त्रों का अध्ययन करें, लेकिन अगर हमारी दृष्टि दूषित है कि हम जब वापस वहां से निकल करके जगत में देखना शुरू करते हैं, तब हम वस्तुओं को उस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से उन्हें हम नहीं देखना चाहिए, या जिस प्रकार से उनकी जो छवि हमारे अंदर बन रही है वो अनुचित है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं सम्यक दर्शन संपन्न कर्म भिन्न निबध्यते। तो पहला इसका हिस्सा है जहां वो कहते हैं कि जो मनुष्य सम्यक दर्शन संपन्न है, जो सम्यक दर्शन से युक्त है, जिसके पास ये सम्यक दृष्टि है, ज्ञान की दृष्टि है, वो कर्मों से बांधा नहीं जाता। कर्मों से बंधने का अर्थ यह है कि वो कर्मों के अधीन नहीं होता। वो कर्म के चक्र में, एक है मैं कर्म कर रहा हूं, एक है मुझसे कर्म करवाए जा रहे हैं। ये जो मुझसे कर्म करवाए जा रहे हैं, मैं खींचा चला जा रहा हूं कर्मों में, ये कर्म का बंधन है। तो इससे छूटने के बारे में यह बताया गया है कि जिसके पास सम्यक दर्शन है, वो कर्मों के द्वारा बांधा नहीं जाता। ठीक है, दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिपद्यते। और जो दर्शन से विहीन है, जो इस सम्यक दर्शन से विहीन है, जो इस ज्ञान से विहीन है, वो बार बार संसार को प्राप्त करता है। संसार क्या है? जन्म, मरण और पुनर्जन्म इत्यादि, ये सब चीजें, इसको संसार शब्द से कहा जाता है। तो अर्थात इस संसार को पार करने का एक तरीका है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन किस प्रकार का है, आगे के श्लोकों में आता है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि देह को किस प्रकार से देखना है। इसका वर्णन योग दर्शन आदि में भी होता है कि ये दृष्टि हमारी किस प्रकार की है, अपने देह आदि के प्रति भी इसको किस तरह से होना चाहिए, यदि हम इसको पार करना चाहते हैं तो। अस्थि स्थूणम स्नायुयुतम मांस शोणित लेपनम चर्मावनद्धम दुर्गंधि पूर्णम मूत्र पुरीशयो जरा शोक समाविष्टम रोगायतन मातुरम रजस्वलम अनित्यम च भूतावासमिमं त्यजेत। यहां पर क्या किया जा रहा है, एक एक शब्द का भी अगर अर्थ ना किया जाए, तो यहाँ पर शरीर का जो वास्तविक स्वरूप है, जैसे आप कभी ह्यूमन एनाटॉमी का जो शरीर रचना है, उसका जो आप सिर्फ एक चित्र अपने सामने 3-4 तरह के मसल को लेकर के, बोन्स को लेकर के, अन्य चीजों को लेकर के सामने रखें, ये उसका वर्णन किया जा रहा है। सुनने में ऐसा लगता है कि निंदा की जा रही है। निंदा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन वास्तविक वर्णन हो रहा है, ये बात ठीक है। ठीक है, कि चर्म से ये बंधा हुआ है, चर्म इसके ऊपर लगा हुआ है, दुर्गंधी है। दुर्गंधी क्यों है? क्योंकि इसको साफ करना पड़ता है। स्वभाव से इसमें दुर्गंधी आ जाती है, लेकिन इसको बार बार नित्य स्नान आदि से इसको साफ करना पड़ता है, इसको स्वच्छ करना पड़ता है। पूर्ण मूत्र पुरीशयो, और ये मूत्र पुरीश से भरा है। मूत्र, तो मूत्र शब्द आपको जानते हैं, पुरीश है जो हमारा मल है, जो गुदा द्वार से निकलता है।
इन सब चीजों से यह है, तभी इसको रोजाना प्रतिदिन इसको साफ सफाई की आवश्यकता पड़ती है। फिर जरा शोक समाविष्टम, ये देह कैसा है, इसमें जरा जो हमारे शरीर वृद्ध होता, ढीला कमजोर होता चला जाता है, उसके शोक से भी ये समाविष्ट है। और रोगों का घर है, रोगायतन, रोगों का घर है, इसको कुछ ना कुछ कभी ना कभी होता रहता है। पीछे भी बहुत बड़ा एक पूरे संसार जिसमें बंधा रहा, ऐसी एक अवस्था आ गई थी। आतुर है, इसको छटपटाहट मची रहती है, इसको तीव्र कुछ अनुभव होते हैं, ये छटपटाता है। और रजस्वलम अनित्यम, ठीक है, ये जिसको हम कहेंगे मैला है, अनित्य है, सबसे जरूरी बात अनित्य है। ये इसको हम आगे भी इसको इस पे चर्चा करेंगे। और भूतावासम इमम त्यजेत, और भूतों का जो पंचभूतों का आवास है, इसको त्यागना है, इसको त्यागे। यहाँ पर त्यागने का अर्थ ये नहीं कि इसको खत्म कर ले, इसको समाप्त करके यहाँ से निकल जाए, वो नहीं। यहाँ पर अर्थ यह है कि इसके जो संग को त्यागे, इससे जो इतना अत्यधिक लगाव है, आकर्षण है, उससे वो त्यागे। और कैसे, नदी कूलम यथा वृक्षो वृक्षम व शकुनिर यथा तथा त्यजन इमम देहम कृच्छ्रात ग्राहात विमुच्यते। जैसे नदी के कूल से वृक्ष हट जाता है, और वृक्ष से शकुनी एक पंछी है वो हट जाता है, तथा त्यजन निमम देहम, वैसे ही इसका त्याग करें। क्योंकि ये संयोग मात्र है। अभी यह क्या बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप इससे बिल्कुल ही स्वाभाविक रूप से, स्वरूप से जुड़ रखे हो। ये एक संयोग है और ये वियोग में परिवर्तित होगा, जो हम जानते भी हैं कि संयोग वियोग हुआ करता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा देह है, इससे हमारा जो संबंध है, देह कहने से इसमें इंद्रियां, जो कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं और मन है, सब सम्मिलित हो गया। और जो पंचभूत हैं वो हो गए, और हमारा आत्मा जो हम है, ठीक है, इनका हमारा यहाँ पर संयोग मात्र है। पंछी का और वृक्ष का आपस में स्वाभाविक संबंध नहीं है, संयोग है, और वो आता है और चला जाता है। इस प्रकार से ही ये धारणा हमारे मन में होनी चाहिए कि ऐसा हमारा संयोग है। ऐसा यदि होता है और हमारा संग त्याग होता है देह से, तो हम एक बहुत ही कष्टदायक ग्राह से, उसके जो जबड़े हैं उससे मुक्त हो जाते हैं, जिसने हमें पकड़ रखा है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। प्रियेषु स्वेषु सुकृतम अप्रियेषु च दुष्कृतम विसृज्य ध्यान योगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम। जो हमारे अपने प्रिय हैं उनमें अपने सुकृत को, उसका विसर्जन करके आप ये हमारा मेरा पुण्य रखिए, और जो अप्रिय है उनको बोलिए आप मेरा जो दुष्कृत है वो आप रखिए, उसमें उसका विसर्जन कर दिया, वहां स्थापना उसकी कर दी। और क्या करना है, ऐसा करने पर ध्यान योग का अभ्यास करना है, ध्यान योग का, जिसका अभ्यास करने से ब्रह्माभ्येति सनातन, ब्रह्म के अभिमुख हो जाता है। ठीक है, ब्रह्म क्या है, परम तत्व है, जिसके जिसका ज्ञान हमें लेना है, जिसके आधार पर सब टिका हुआ है। ये जो अनित्य वस्तुएं हैं, एक नित्य के आधार पर हैं, ये नित्य वस्तु ही ब्रह्म है। यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निस्पृहः तदा सुखम वाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम। जब अपने भाव से, अपने विचार से ही, अंतःकरण से ही सभी वस्तुओं में निस्पृह, निरीह हो जाता है, उसको इच्छा या इसमें चेष्टा नहीं रहती कि मुझे इसे प्राप्त करना है, तब ही वो सुख प्राप्त करता है। अब ये ध्यान देने वाली बात है। जिस लंबे टिकाऊ सुख के लिए, टिकने वाले सुख के लिए हम इतने प्रयत्न कर रहे हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तरफ दौड़ते हैं, वस्तुओं को पकड़ करके रखते हैं, उन्हें छूटने नहीं देते, कुछ वस्तुओं को छोड़ के भागते हैं कि हमारा सुख जो है उसकी हानि हो रही है। ऐसा स्थिर सुख जो है वो इस क्रिया से, ये जो हमारी क्रिया प्रतिक्रिया चलती है, इससे नहीं मिलने वाला। ये यहां पर यह बताया जा रहा है। तो जब पूरी प्रकार से आप सभी वस्तुओं में, सभी भावों में, सभी भाव का अर्थ जितनी भी ये वस्तुएं, प्राणी हैं, वस्तुएं हैं, इनमें जब हम निस्पृह हो जाते हैं, हमें इच्छा नहीं रहती इन्हें प्राप्त करने की, तदा सुखम अवाप्नोति, तब सुख को प्राप्त करता है। प्रेत्य चेह च शाश्वतम, और यहां से जब ये मृत्यु होती है, देह का त्याग करता है, तब शाश्वत की प्राप्ति होती है। यहाँ पर शाश्वत सुख के साथ भी आप इसका अन्वय कर सकते हैं, या सुख और शाश्वत को अलग करके, शाश्वत एक ही है ब्रह्म, उसकी प्राप्ति होगी। अनेन विधिना सर्वांस त्यक्त्वा संगान शनैः शनैः, एक बार में संगों का त्याग नहीं किया जा सकता। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भी विस्तृत रूप से इसका वर्णन है
कि संघ का त्याग कैसे करना है, क्या क्या युक्तियां प्रयुक्त की जा सकती हैं जहां पर संघ का त्याग जिससे हम कर सकें। मुख्य यहाँ पर बात संघ का त्याग करने की है। आप इंद्रियों को उनका काम करने से रोक नहीं सकते, आप शरीर को उसका काम करने से रोक नहीं सकते, लेकिन जिस संघ से आप इन चीजों से जुड़े हैं उसको आप संभाल सकते हैं कि कितना रखना है कितना नहीं रखना। अनेन विधिना, इस प्रकार से जब सभी संघों को धीरे धीरे शनै शनै त्याग करता है, छोड़ता है, सर्वद्वंद्व विनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते, तब सभी संघों का धीरे धीरे त्याग करने से, इसी विधि से सभी द्वंद्वों से, सभी पीड़ा से निर्मुक्त होकर के, सभी बंधनों से मुक्त होकर के ब्रह्म में ही अवस्थान प्राप्त करता है, यानी ब्रह्म ही हो जाता है या ब्रह्म से सायुज्य आदि प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है। ध्यानिकम सर्वमेवैतद यदेतद अभिशब्दितम, ये क्या है? ध्यान से निष्पन्न करने वाली बातें हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, हमें ये पता है कि हाँ जी ध्यान योग आदि करना चाहिए, लेकिन हम उसके लिए पूरे प्रकार से सज्ज नहीं होते, तैयार नहीं होते, जिस कारण से हम कभी वहां जाकर के वापस आ जाते हैं। इसीलिए कहा गया है पहले आप दृष्टि को उस प्रकार से करिए, दृष्टि वैसी होगी तभी जाकर आपका ध्यान योग में जो आपकी रुचि है वो बनेगी। तो लिखा ध्यानिकम सर्वमेवैतद यतेतद अभिशब्दितम, जो कहा गया है सब ध्यानिक है, ध्यान से निष्पन्न होने वाला है। न ह्यनध्यात्मविद कश्चित क्रियाफलम उपाश्नुते, अब ये भी आवश्यक है, जो अध्यात्म को जानने वाला नहीं है, जो आत्मा को जानने वाला नहीं है या आत्मा से जुड़े विषयों को जानने वाला नहीं है, वो किसी भी फल को प्राप्त नहीं करता, किसी भी क्रिया के फल को प्राप्त नहीं करता। ठीक है, यहां पर ये बात स्पष्ट रूप से कही गई। इसका अर्थ क्या है कि अपने आत्मा का ज्ञान होना, चाहे विशेष रूप से हो या सामान्य रूप से हो, ये आवश्यक है ताकि आपको क्रियाओं का फल भी प्राप्त हो सके। पीछे इंद्रिय निग्रह की बात की गई थी कि उससे ही आपको विहित क्रियाओं की, विशेष धर्मों की भी फलों की प्राप्ति होगी। यहाँ पर है कि आपको इंद्रिय निग्रह करने का भी अर्थ है कि उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन है, जो मैं आगे इस पर भी चर्चा हम करेंगे। तो मनुस्मृति में जो सम्यक दर्शन कहा गया, इसकी मोटी मोटी बातें क्या है कि मुख्य रूप से मनुस्मृत्युक्त सम्यक दर्शन इस देह में और देह से संबद्ध विषयों में दोष बताकर आत्मज्ञान की ओर हमें प्रेरित करता है, आत्मज्ञान की ओर उन्मुख कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब आपको आप हमारा किसी भी चीज के प्रति अगर अनिष्टता का भाव आ जाए कि ये वस्तु हमारे लिए अनिष्ट है, ये त्याज्य है, तो उससे हमें क्या होता है, हम उससे दूर होते हैं और किसी अन्य वस्तु की तरफ जाते हैं। जब समस्त संसार की ही जो वस्तुएं हैं, जो अस्थिर हैं, अनित्य हैं और परिवर्तनशील है, सतत परिवर्तन इनका होता रहता है, तो उसमें से किसी नित्य सुख आदि की जब हमें चेष्टा ही हमारी खत्म हो जाए, हमें लगे कि यहाँ से तो सुख नहीं मिल रहा, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी एक ही फिर दिशा बचती है, वो अपने अंदर की। अतः इस सम्यक दर्शन के दो भाग हैं। अनात्मा के प्रति दोष दृष्टि द्वारा वैराग्य, पहली चीज ये है। तो अनात्मा क्या है? आत्मा से भिन्न जो जो चीजें हैं वो यहाँ पर अनात्मा के रूप में कही गई है। ठीक है, जो देह इत्यादि वस्तुएं हैं वो, और उसके बाद में आत्मा के प्रति जिज्ञासा। ठीक है, जब एक चीज ये होगी कि देखिए आत्मा से भिन्न वस्तुएं हैं, उन पर आप इतना निर्भर नहीं कर सकते, वो आपको बांध रही हैं, तो आपके पास एक जो वस्तु, एक दिशा बची है, वहां पर आपकी जिज्ञासा उत्पन्न होगी। जिस इंद्रिय निग्रह के लिए मनुस्मृति ने ज्ञान को उत्तम उपाय बताया है, उस ज्ञान का स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है। ठीक, अब हम आगे दर्शन शास्त्र आदि के ऊपर अब चर्चा करते हैं। दर्शन शास्त्र क्या है? तो इसमें जैसे मैंने दर्शन का कुछ अर्थ पीछे किया था, दर्शन का अर्थ केवल देखने से नहीं है, उसका अर्थ ज्ञान से। तो यहाँ पर दर्शन का निर्वचन किस प्रकार से किया जाता है? दृश्यते अनेन तत्वम इति दर्शनम, इस जिसके द्वारा या इसके द्वारा कोई तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तत्व का अर्थ क्या है? जो वस्तु जैसी है वैसा। ठीक है, तो इसका साथ में ये भी अर्थ है कि सामान्य रूप से जो चीजें जैसी हैं वैसी हमें समझ में नहीं आती हैं, तो इसलिए हमें विशेष उपकरणों का, विशेष साधनों का सहारा लेना पड़ता है। उन्हीं सहारों में से एक है दर्शन या दर्शन शास्त्र। मुख्य आस्तिक दर्शन कौन से हैं? पूर्व व उत्तर मीमांसा, सांख्य और योग दर्शन, और न्याय और वैशेषिक दर्शन। साथ में अन्य अन्य भी हैं, मुख्य ये है। आस्तिक कहने का अर्थ यह है कि ये वेद को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। दर्शन शास्त्रों का लक्ष्य प्रायः यह है कि मनुष्य को अभ्युदय व निश्रेयस की प्राप्ति हो। वो भी यही बात अपने जब अपना विषय प्रयोजन इत्यादि बताते हैं, अनुबंध चतुष्टय बताते हैं, तो वहां पर
प्रयोजन दर्शन शास्त्र का अपने अपना जो प्रयोजन है वो यही बताते हैं कि हम मोक्ष प्रदान करना चाहते हैं, हम अभ्युदय प्रदान करना चाहते हैं। दर्शन शास्त्र परीक्षण और विवेक पर बल देते हैं, जो आगे हम देखेंगे, और उससे क्या लाभ होता है। ये दर्शन की जो विवेक की दृष्टि है या परीक्षण की दृष्टि है, परीक्षण की प्रवृत्ति है, उससे वैराग्य में क्या उपकार होता है, उससे इंद्रिय निग्रह में क्या हमें सरलता आती है, क्या हमें फायदा होता है। दर्शन शास्त्र भी मुख्य रूप से विचार शास्त्र है। अब ये कुछ मुख्य बातें हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए जब हम दर्शन शास्त्र के आगे हम चर्चा करने जाएं। परीक्षण और विवेक पर बल देते हैं, और विचार शास्त्र है। विचार शास्त्र का अर्थ क्या है कि जैसा दिखता है उसको हम अंधे होकर नहीं मानते दर्शन शास्त्र में ना। वैसे तो अन्य शास्त्र में भी यही प्रवृत्ति है, लेकिन दर्शन शास्त्र मुख्य रूप से इसी में लगा रहता है। तो वहां पर भी जो तत्व है उसके प्रति उन्मुख होने के लिए विचारशीलता को यहाँ पर बल दिया जाता है, उसका महत्व समझा जाता है। इंद्रिय निग्रह और दर्शन शास्त्र, मनुस्मृति के कथन के अनुसार इंद्रिय निग्रह का अधिक सक्षम उपाय ज्ञान है। यह ज्ञान कुछ इस प्रकार का होना चाहिए जिससे इंद्रियों व उनके विषयों में दोष स्पष्ट दिखाई देने लगे। हम किसी चीज से तब तक निवृत्त नहीं हो सकते जब तक हमें उसमें दोष ना दिखाई दे, और यदि हमें समस्त वस्तुओं के प्रति अपने इंद्रियों को नियंत्रण में लेकर के आना है या उनसे अपना संग जो है वो कम करना है, तो हमें दोष स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। केवल मानसिक रूप से बोलने से वो दोष नहीं दिखाई देंगे, उसकी प्रवृत्ति बनानी पड़ेगी। ऐसा ज्ञान दर्शन शास्त्र से प्राप्त किया जा सकता है। दर्शन शास्त्र भी इसी दिशा में काम करते हैं, और चतुर्दश विद्याएं जो गिनाई गई हैं याज्ञवल्क्य स्मृति में, वहां पर दर्शन शास्त्र का भी वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, न्याय शास्त्र है जिसमें न्याय और वैशेषिक दोनों आ जाते हैं। पूर्व और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा धर्म जिज्ञासा के लिए और उत्तर मीमांसा ब्रह्म जिज्ञासा, जिसे वेदांत भी कहा जाता है। वेदांग है इत्यादि, ये सब 14 विद्याएं कही है, और ये प्रमाण है, ये प्रमाण माने जाते हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं न्याय वैशेषिक में। ठीक है, न्याय वैशेषिक क्या करता है, इसको हम तर्क शास्त्र भी कह सकते हो कि न्याय और वैशेषिक मिला करके एक तकरीबन 12वीं 11वीं सदी के आसपास से, कुछ वैसे 9वीं सदी के आसपास से भी न्याय शास्त्र और वैशेषिक शास्त्र मिल करके इनका एक समग्र रूप बना, जिसको तर्क शास्त्र के नाम से जाना जाने लगा। और उसमें इनका विशेष जो बल रहता है वो प्रमाण विद्या पर रहता है। प्रमाण विद्या क्या है, प्रमा की प्राप्ति के लिए। प्रमा क्या है, यथार्थ ज्ञान। तो उसकी प्राप्ति के लिए यहाँ पर बहुत यत्न किया जाता है, और क्योंकि जब शास्त्र किसी चीज को करता है, इसका अर्थ है कि सामान्य उपायों से उसकी प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए उसका यहाँ पर एक विशेष एक ढांचा बनाया गया है जिसके तहत उसे प्राप्त किया जा सके। तो यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रमाण विद्या यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि न्याय शास्त्र की त्रिविध प्रवृत्ति होती है। 3 प्रकार के इसके क्रियाएं हैं। पहला उद्देश्य, लक्षण, और उसके बाद परीक्षा। उद्देश्य में क्या है, किसी वस्तु का एक नाम लिया जाता है कि ये वस्तु है, इतना मात्र कहना ये उद्देश्य कहलाता है। लक्षण में उस वस्तु के किसी असाधारण धर्म का या किसी उसकी यूनिक क्वालिटी का नाम लिया जाता है। यहाँ धर्म का अर्थ गुण है, पर हम गुण शब्द बहुत इस्तेमाल नहीं करते हैं, गुण का कुछ और अर्थ यहाँ पर हम न्याय शास्त्र और वैशेषिक शास्त्र में लेते हैं। तो असाधारण धर्म या ऐसी कोई यूनिक क्वालिटी जो किसी अन्य वस्तु में नहीं है, सिर्फ उसी में है, वैसा उसको बोल करके उसका लक्षण किया जाता है। लक्षण का काम यह है उस वस्तु की पहचान कराना। इस वस्तु का लक्षण क्या है, इसका अर्थ है इस वस्तु की पहचान क्या है, तो वैसा लक्षण किया जाता है। उसके बाद में लक्षण करने पर, जिस वस्तु पर वो लक्षण किया गया है और जिस प्रकार से लक्षण किया गया है, उसकी परीक्षा की जाती है। यह विचार किया जाता है कि क्या वो लक्षण उस पर लागू होता है सही से, कि लागू नहीं होता है, कि अन्य कोई इसमें दिक्कत आ रही है, कि किसी और वस्तु पे लागू तो नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मुख्य जो हिस्सा है वो लक्षण और परीक्षा का है। नाम लेने मात्र का तो काम हो जाता है, वो आसान है, लेकिन उसके बाद में लक्षण बनाना, उसके लिए आपको परीक्षण करने पड़ेंगे पहले लेवल पर, और उसके बाद लक्षण बन जाने पर भी आपको परीक्षण बार बार करने पड़ेंगे। और ये हमें कैसे पता लगता है कि परीक्षण चलता रहा, कि जितने भी ग्रंथ आते रहे न्याय वैशेषिक शास्त्र के, उनमें लक्षणों में परिवर्तन होता रहा, लक्षणों को रिवाइज किया गया, उन्हें उनका शोधन किया गया, पुनः पुनः शोधन किया गया। इससे हमें पता लगता है कि परीक्षा की प्रवृत्ति बार बार चलती रही। और प्रमाण का जो लक्षण, जैसे मैंने पीछे प्रमाण विद्या के अवसर पर कहा था, उसका लक्षण प्रमाण का किया जाता है प्रमाकरणम प्रमाणम।
प्रमा का करण या जो असाधारण साधन है प्रमा का, प्रमा क्या है? यथार्थ विद्या या यथार्थ अनुभव। जो हमें इस वक्त अनुभव हो रहा है वो मिश्रित है, उसमें कुछ यथार्थ है, कुछ अयथार्थ है। यथार्थ का अर्थ है जो जैसा है वैसा ही उसका ज्ञान यथार्थ ज्ञान कहलाता है। यदि वैसा ही ज्ञान ना हो, कुछ और बीच में से उल्टा सीधा हो जाए, तो उसको हम अयथार्थ ज्ञान कहते हैं। तो इस शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है आपको प्रमा प्रदान करना, कुछ खास विषयों को लेकर के, जिससे आप मोक्ष प्राप्त करें। इसके तहत जो अयथार्थ ज्ञान है उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं कि भ्रम कैसे होता है, भ्रम क्या होता है, संशय आदि कब उत्पन्न होते हैं इत्यादि। इससे हमें क्या समझ में आता है कि तर्कशास्त्र मुख्य रूप से परीक्षण की प्रवृत्ति पर बल देता है, जिससे विषय दोष दृष्टि बलवती होती है। जब आप, जैसे आपने बहुत बार सुना भी होगा कि आप ये इंसान ज्यादा पढ़ लिख गया, ऐसे अब हर चीज से दिक्कत होने लगी। ठीक है, अब वो सही है गलत है हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन मुख्य बात क्या है कि जैसे कुछ जानकारी अधिक आती है तो आपकी दृष्टि में परिवर्तन होता है। दृष्टि में परिवर्तन होता है और आप चीजों को, जब आपको पता लगता है कि जैसे आपको पहले बताया गया था या पहले आप जानते थे किसी वस्तु को, वो वस्तु वैसी नहीं थी, तो हो सकता है अन्य वस्तुओं के साथ भी वही स्थिति हो। उस परिस्थिति में आकर के आप परीक्षण करना प्रारंभ करते हैं, बार 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 बार। और उस परिस्थिति में क्या होता है, आपको दोष नजर आने सरल हो जाते हैं। ठीक है, एकदम से नहीं आते, लेकिन आपकी प्रवृत्ति ऐसी बन गई है कि आप थोड़ी सी चीज में दोष पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ उपकरण होते हैं वो कुछ ही प्रकार के दोष पहचान सकते हैं, दूसरे प्रकार के नहीं पहचान सकते। आपके साथ भी पहले ऐसे होगा, फिर धीरे धीरे आपके दोष पहचानने की प्रवृत्ति इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपकी दोष दृष्टि स्वयं ही उत्पन्न होने लग पड़ेगी। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु जो हैं, जिसका हमारे सब्जेक्ट से कुछ सीधा सीधा संबंध है, हम वो देखते हैं। सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण, मैं देह हूं, इस भावना का खंडन किया जाता है। ठीक है, ये सामान्य भावना है, लौकिक भावना है। चार्वाक आदि इसका समर्थन करते हैं कि मैं देह हूं, यही सत्य है। ठीक है, लेकिन यहां पर किस प्रकार का उपदेश किया गया है कि जो आत्मा है, आत्मा का अर्थ है मैं, इस शब्द से जिसका अभिधान किया जाता है, जिसका कथन किया जाता है। आत्मा कौन है? जो इस देह के द्वारा भोग कर रहा है, उसे आत्मा हम कहते हैं। कि देह ही आत्मा नहीं है, और केवल देह नहीं, देह इंद्रिय आदि जितनी वस्तुएं हैं वो आत्मा नहीं, और साथ ही साथ आत्मा नित्य भी है। ठीक है, एक तो वो ये अनित्य वस्तुओं से उसका कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है, वो ये ना ये देह है, ना इंद्रियां हैं, ना मन है, ये सब चीजें आत्मा नहीं है। साथ में इससे अलग है और नित्य है। तो अपनी अनित्यता के बारे में और अपने आप को देह मानने के कारण से अनित्यता भी छोड़ देते हैं। हमें काफी देर तक याद भी नहीं आता कि हम अनित्य हैं, हमारा भी कभी अंत आने वाला है या हमें कुछ होगा। जब तक हमें रोग ना हो जाए, जब तक दुख ना आ जाए, जब तक कोई परिस्थितियां ऐसी ना हो, हम बिल्कुल बहुत ही आत्मविश्वास के साथ चलते हैं, कुछ और प्रकार का आत्मविश्वास। वो क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को देह मानते हैं, और देह के साथ जुड़ी जितनी पहचान है हमारी, हमारा रंग, हमारा कद, हमारा कुल, सब वस्तुएं, उसके साथ हमारा इतना ज्यादा जुड़ाव हो जाता है कि हमें ज्ञान की दृष्टि नहीं आ पाती। तो उन भावनाओं का यहाँ खंडन होता है। साथ ही हमारा इंद्रियों के साथ जो संबंध है वो भी इससे सीधा सीधा जुड़ा है, कि जब हम अपने आप को देह मानेंगे तो हमारा इंद्रियों के साथ क्या संग होगा? बहुत ही जुड़ाव होगा, बहुत ज्यादा जुड़ाव होगा। ठीक है, जब भी कोई खतरा आएगा तो हम कितने ज्यादा टाइट महसूस करेंगे, जब सुख होगा तो कितने ज्यादा हम उछल कूद करेंगे, वो सब इस पर निर्भर करता है। शरीर क्या है? ये आत्मा का भोग आयतन है, भोग का आश्रय है। ये वो स्थान है, ये वो उपकरण है जिसके द्वारा आत्मा भोग करता है। भोग क्या चीज है? सुख या दुख में से किसी एक का अनुभव करना, एक क्षण के अंदर या सुख या दुख का अनुभव जो है, यही समग्र रूप से भोग कहलाता है। और जो ये दुख है, इसके कुछ 21 भेद बताए जाते हैं। यहाँ मैंने मुख्य रूप से जो केशव मिश्र द्वारा रचा गया ग्रंथ है तर्क भाषा, उसको हमने आधार के रूप में लिया है। तो दुख के 21 भेद कैसे हैं वो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक शरीर जो हमें बहुत प्रिय है, जिसे मैं अपना आप मानता हूं कि मैं शरीर हूं, वो दुख है। 6 इंद्रियां, 6 विषय। ठीक है, यहाँ पर 6 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन को लिया गया।
उनके 6 विषय, उन 6 विषयों से संबंध 6 ज्ञान, सुख और दुख। दुख हेतु होने से या दुख का कारण होने से शरीर आदि भी दुख है। दुख का कारण क्यों है? क्योंकि आप भ्रम पूर्वक इसको कुछ और समझ लेते हैं। दूसरा, रोग आदि से ग्रस्त रहता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ लगा रहता है। कुछ क्रियाएं जबरदस्ती हमें करनी पड़ती हैं, भूख आदि लगती है, वो जबरदस्ती हमें उसको खिलाना पड़ता है, चाहे हमारा मन हो ना हो, इत्यादि सब कुछ। तो ऐसी चेष्टाएं होने के कारण से ये जो शरीर आदि हैं, जो हमें बहुत प्रिय हैं, ये भी दुख का कारण है, और इसीलिए इसको दुख कह दिया गया। और न केवल ये सब, सुख भी दुख कहा गया है, क्योंकि सुख के भोग से भी दुख की तैयारी होती है। ठीक है, सुख और दुख का चक्र चलता है, और सुख भी दुख के पक्ष में ही गिरा हुआ, दुख का पक्षपाती है, वो उस तरफ है, हमारी टीम में नहीं है। तो इसलिए उसे भी दुख कहा गया है, क्योंकि सुख आया, भोगा, बहुत खुश हुए, जैसे वो खत्म हुआ हम वापस उसी अवस्था में आ गए। अब हमें कोई और सुख दोबारा से चाहिए, पर उसके लिए हम चेष्टाएं करेंगे, कितनी ही व्यर्थ चेष्टाएं करेंगे अगला सुख पाने के लिए, फिर वो खत्म होगा, फिर अगली व्यर्थ चेष्टाएं आरंभ हमारी होंगी। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में हम ही, ये जो शरीर है यही हम है, और इसके लिए हमें सब कर्म करना है। सुख दुख इच्छा आदि आत्मा के गुण हैं, उसी में उत्पन्न होते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं। एक ये भी है। तो हम बाहर की वस्तुओं को, जिनको हम ब्लेम करते हैं, उन पे दोष देते हैं कि इसकी वजह से मुझे सुख, इसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है, ये सब बातें क्या हैं? ये अपने आप के ही अंदर उत्पन्न हो रही हैं, वही लीन हो जाती हैं। ये आत्मा के गुण हैं, हमारे गुण हैं। और मैं जब हमारा या अपना आप कह रहा हूं, मैं शरीर की बात नहीं कर रहा इस शास्त्र के अनुसार। साथ ही साथ, अभी तो ये अपनी हो गई, सारा जो दृश्यमान जगत है, जिससे हम सब, ये लैपटॉप मेरे सामने पड़ा है, ये स्क्रीन है, ये पुस्तकें हैं, ये शरीर है, सब कुछ है, बाकी भी सब जितना कुछ है, ये जिसके प्रति मैं सुख प्राप्ति की और दुख के त्याग की चेष्टाएं करता हूं, ये सब परमाणुओं का ढेर है, परमाणुओं का संचय है। ठीक है, इसकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, इसका अपना कोई स्वरूप अपना नहीं है। ये परमाणुओं को इकट्ठा कर करके, एक साथ कर करके, परमाणु, द्विणुक, त्रिणुक इत्यादि मिला करके सब बना है। ठीक है, और ये सब इसी कारण से सतत परिवर्तनशील है, ये नित्य नहीं। तो जिससे मैं नित्य सुख की इच्छा कर रहा हूं, वही अनित्य है स्वयं। ठीक है, और वो क्या है? जो मुझे लग रहा है वो बिल्कुल नहीं। मुझे लग रहा है कि ये एक समग्र वस्तु है, नहीं, ये परमाणुओं से मिल करके बनी है। ठीक है, इस प्रकार के दृष्टि भंग, हमारा जो पूर्व दृष्टि है उसका भंग करके नई दृष्टि हमें दी जाती है। फिर राग द्वेष मोह इत्यादि, ये आत्मा के दोष कहलाते हैं, क्योंकि आत्मा को दूषित करते हैं। दूषित किस प्रकार से करेंगे? इच्छा से हमारी हित प्राप्ति के चेष्टा होगी कि हमें अपना हित या सुख वाली वस्तु प्राप्त करनी है, सुख का साधन प्राप्त करना है। द्वेष से हमें दुख को या अनिष्ट वस्तु को छोड़ने की चेष्टा होगी, और मोह से हमारी व्यर्थ चेष्टाएं होंगी। और मोह बहुत फैला हुआ है, इसको अलग से करके देखा जाता है, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो इच्छा और द्वेष दोनों पर है। ठीक है, फिर विषय क्या है? जो जो इंद्रियों के विषय हैं, रूप रस गंध इत्यादि, वो सब। और इन्हीं के जो व्यर्थ संग है इनके साथ, इन इंद्रियों के साथ जो अत्यंत जुड़ाव है, यही हमारा दोष कहलाता है, इसी का हमने त्याग करना होता है। ठीक है, इसके बाद आता है कुछ उदाहरण है, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से विषय दोष दृष्टि का और वैराग्य का कथन किया गया है। एक न्याय सूत्र भाष्य है, उसके ऊपर उद्योतकर, भरद्वाज उद्योतकर ने जो भाष्य लिखा है, वहां पर उसमें कुछ बातें कही गई हैं कि पहला प्रश्न आता है कि मिथ्या ज्ञान यानी भ्रम रूप जो आपका ज्ञान है, जो आपको गलत ज्ञान हो रहा था, जब वो हटता है तो राग आदि दोष हट जाते हैं। कि जब कारण गया तो कार्य भी, जो कॉज गया तो इफेक्ट भी चला जाएगा। लेकिन जो तो राग आदि उत्पन्न हो चुके हैं, जो दोष उत्पन्न हो चुके हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, उनको हम कैसे हटाएं, उनकी निवृत्ति कैसे होगी? तो वहां पर कहा गया है तेषामपि वैराग्यात निवृत्ति, उनकी वैराग्य से निवृत्ति हो जाएगी। किम पुनर्वैराग्यम, ये वैराग्य क्या है? भोगानभिष्वंग लक्षणम इत्युक्तम। भोगों में जो अत्यंत राग या अत्यंत संग है, अत्यंत आसक्ति है, उसकी निवृत्ति जो होती है, या जो जो ऐसा संग है वो आसक्ति है, और ऐसा आसक्ति न होना, इतनी तीव्र आसक्ति ना होना भोगों के अंदर, यानी सुख दुख के भोगों में तीव्र आसक्ति ना होना, इसी को वैराग्य कहा गया है। ठीक है, और असक्तिश्च सत्यम बाधते,
जो असक्ति है ये शक्ति को, यानी असंग है ये संग को बाधित करता है, उसे रोक देता है। तत्पुनर्वैराग्यम कथम भवति, ये वैराग्य किस प्रकार से होता है? तत्व ज्ञानात विषय दोष दर्शनात्, तत्व ज्ञान से विषय दोष दर्शन से, विषय दोष दर्शन के साथ ही जोड़ा गया है तत्व ज्ञान को। और ऐसे ही अन्य स्थानों पर भी तर्क भाषा में, प्रमेय खंड के अंदर और न्याय कंदली के उद्देश्य प्रकरण में भी ये बात कही है। न्याय कंदली जो है ये विशेष रूप से वैशेषिक दर्शन का ग्रंथ है, और इसमें भी बोला गया है कि विषयों में विरक्त होने के लिए, वैराग्य प्राप्त करने के लिए तत्व ज्ञान आवश्यक है। तो वहां से तत्व ज्ञान जब आपको प्राप्त होगा तो आपका अपने आप से विषयों में जो है दोष दिखने से आपकी उनके प्रति अप्रवृत्ति हो जाएगी, आप उनके प्रति बहुत दौड़ भाग करने से रुक जाएंगे, केवल जितना आवश्यक है उतना ही करेंगे। इसके बाद हम सांख्य योग पर आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले मैंने न्याय वैशेषिक इसलिए लिया क्योंकि ये साधारण जो हमारी इस जगत के प्रति अवधारणा है, जगत के बारे में अवधारणा है, उससे संबंधित है। सांख्य योग आदि धीरे धीरे फिर ये सूक्ष्म सूक्ष्म होते चले जाते हैं। अब है सांख्य योग। इसके अंदर भी सबसे पहली वही चीज, मैं देह हूं, इस भावना का खंडन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा, जिसको यहां पर इस शास्त्र में पुरुष कहा जाता है, ये समस्त जड़ समूह से भिन्न है और नित्य है। जितनी जड़ वस्तुएं हैं, शरीर से लेकर के सब कुछ, उससे ये पुरुष भिन्न है, चेतन है और नित्य भी है। इससे मैं देह हूं ये भावना का खंडन हो गया। और केवल इतना नहीं, मैं, ये जो अहम की भावना है, अहंकार है, ये भी जड़ तत्व से ही उत्पन्न है, प्रकृति से उत्पन्न है। ये भी आत्मा का अपना स्वाभाविक नहीं, ये भी ऊपर से जोड़ रखा है। तो मैं की भावना, मैं कर रहा हूं, मैं ये, मैं वो, ये मैं की भावना भी आपके अपने आत्मा की, हमारी अपनी नहीं है। ये बाहर से आई है, ये प्रकृति की देन है, जो जड़ है, ना कि चेतन और अनात्मा है। बुद्धि भी जड़ तत्व है। जो जिस बुद्धि के द्वारा हम अपना इतना विचार विमर्श, इतना अध्यवसाय करते हैं, ये भी जड़ तत्व है, ये भी चेतन तत्व नहीं है और पुरुष से भिन्न है या आत्मा से भिन्न है। सब भोग्य जगत मूल प्रकृति का परिणाम मात्र है। परिणाम का अर्थ है परिवर्तित स्वरूप। तो एक मूल प्रकृति है, वही अन्य अन्य रूपों में परिवर्तित होती रहती है। तो आपको जो भेद इतना दिखाई दे रहा है, एक वस्तु से भागते हैं, दूसरे के प्रति जाते हैं, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए इत्यादि, वो सब टेक्निकली उसका आधार क्या है? एक ही है। ठीक है। इससे भी बहुत झकझोरने वाला काम होता है कि हमारी जो पुरातन दृष्टि थी, जो पूर्व दृष्टि थी, वो उसमें कंपन पैदा की जाती है। क्यों? क्योंकि यहां बताया जा रहा है कि आप मान रहे हो कि इस वस्तु का स्वभाव बिल्कुल भिन्न है, इस वस्तु का बिल्कुल भिन्न है, ये पारमार्थिक रूप से फंडामेंटली ये बिल्कुल अलग वस्तु है। तो यहां से भागना और इसकी तरफ जाना बहुत ही अच्छी बात है, ये आप करते रहिए इसको। जो ऐसी जो आपकी दृष्टि थी उसको यहाँ पर तोड़ा जाता है। साथ में सत्कार्यवाद का सिद्धांत, जिसमें कहा जाता है कुछ नया उत्पन्न ही नहीं होता है, सब परिवर्तन मात्र हो रहा है, चीजें इवॉल्व कर रही हैं, इवॉल्व डिवॉल्व जैसे भी कहें आप, लेकिन इसमें है कुछ नया उत्पन्न नहीं हो रहा। ठीक है। तो आप कहें ये वस्तु नहीं है, ये वस्तु नहीं है, उस भावना को भी वहां पर उसका खंडन किया जाता है। चेतन पुरुष व अचेतन प्रकृति के संयोग से प्रकृति चेतन सी, और पुरुष जो है, जो आत्मा है, जो कैसा है? करता नहीं है, वो कुछ करता, उसमें करण शक्ति ही नहीं है, वो कुछ क्रिया संपादन नहीं कर सकता। तो वो प्रकृति के संयोग से, जो प्रकृति जड़ है, तो पुरुष कैसी भावना को पालने लग जाता है कि वो करता है, वो क्रियाएं कर रहा है, और प्रकृति जो जड़ है वो चेतन जैसी हो जाती है। तो दोनों में क्या हुआ? परस्पर एक दूसरे के धर्मों का आरोप हो गया, एक दूसरे के गुणों का, एक दूसरे के स्वरूप का आरोप हो गया। तो प्रकृति जो जड़ है वो हमें कैसे लग रही है? जैसे देह हमें कैसा लग रहा है? अभी हमें अपना देह चेतन लगता है, विवेचन करने पे, विचार करने पे हमें समझ में आता है कि देह चेतन नहीं है, देह जड़ है। चेतन के संयोग से चेतन जैसा काम कर रहा है, जो क्रियाएं हमें दिख रही हैं। और ऐसे ही जो पुरुष है, जो कि चेतन है और करता नहीं है, उसमें करने की ना उसका करने का स्वभाव है, ना ही उसमें कोई ऐसा सामर्थ्य है कि वो कुछ कर सके, उसमें कर्तापन का भाव आ जाता है। और यही भ्रम है, यहीं से मैं देह हूं वाली बात प्रारंभ होती है, और इसे ही अविद्या या भ्रम कहा गया। भ्रमवश पुरुष स्वयं को प्रकृति से भिन्न न जानने के कारण से जरा मरण आदि के दुख भोगता है। अतः जगत स्वभाव से ही दुख है। जगत स्वभाव से क्यों दुख है? क्योंकि इसमें रहते हुए सामान्य रूप से
प्रायः क्या होता है कि पुरुष अपने आप को जड़ प्रकृति से अलग जान नहीं पाता, अपना उससे विवेक अपने आप को अलग करके नहीं देख पाता कि मैं अलग हूं और ये अलग, ठीक है। इस कारण से जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं, जरा के, मरण के, उत्पत्ति के, अलग अलग जो वस्तुएं अपीयर कर रही हैं और जा रही हैं, उसको वो अपने आप पर लेकर के दुख भोगता है, और ये भ्रमवश है। बुद्धिन्द्रियां रूप आदि विषयों का आलोचन मात्र करती हैं, कर्मेंद्रियां वचन आदि क्रियाएं करती हैं, इसका हेतु पुरुषार्थ है। बुद्धिन्द्रियां कौन सी हैं? आपके चक्षु, श्रोत्र इत्यादि। चक्षु से देखने का काम है, रूप का यहाँ ग्रहण होता है। श्रोत्र से सुनने का काम है, शब्द का या साउंड का ग्रहण यहाँ से होता है। तो इन इंद्रियों का काम क्या है? स्वाभाविक अपने अपने विषय का आलोचन मात्र करना, उसको देखना और आगे इंफॉर्मेशन ले जाना। कर्मेंद्रियां, ठीक है, आपका वाग इंद्रिय जिसका प्रयोग करके बोल रहा हूं, ये सब चीजें हैं, इनका अपना अपना काम है, तो इनका स्वाभाविक कर्म है। लेकिन इनका कर्म हो क्यों रहा है? ये तो जड़ है। जड़ वस्तुएं जो चेतन नहीं है, वो अपनी क्रिया स्वयं अपनी मर्जी से तो कर नहीं सकती। तो इनका कारण क्या बताया गया है? पुरुषार्थ। ये जो आत्मा है, उसका भोग और मोक्ष संपन्न करना, ऐसे प्रयोजन के लिए ये इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, और इसी प्रयोजन के लिए प्रकृति करे। तो प्रकृति की समस्त प्रवृत्ति, ये जो जगत बनना, चीजें प्रकट होनी, विलीन हो जानी, ये काम क्यों हो रहा है? ये पुरुष के विमोक्ष के लिए हो रहा है, पुरुष के मोक्ष के भाव को संपन्न करने के लिए हो रहा है। उसे जो ये लग रहा है कि वो बंध चुका है, तुच्छ हो चुका है, और वो देह है, ऐसी भावनाएं पाल करके इतना छटपटा रहा है, उसको शांत करना ही प्रकृति की चेष्टा का प्रयोजन माना गया है। वस्तुतः पुरुष का बंधन नहीं, मोक्ष नहीं, संसरण नहीं। ना पुरुष का कोई बंधन है वास्तविक रूप से, क्योंकि वो क्रियाहीन है, वो केवल एक दृष्टा है, सिर्फ अनुभव करता है, भोग करता है, और कुछ नहीं वो कर सकता, वो कुछ क्रिया नहीं कर सकता। तो क्रिया ना करने के कारण से उसका बंधन भी नहीं है, बंधन ना होने से मोक्ष नहीं है, और संसरण, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म आदि कर्म उसके नहीं होते। ये सब प्रकृति के ही है, ठीक है, जो कि एक जड़ तत्व है, मौलिक तत्व है। और इसमें कुछ उदाहरण के सांख्य कारिका के अंदर जो प्रारंभ होता है, सांख्य कारिका बहुत ही मौलिक ग्रंथ है सांख्य दर्शन का, इसका प्रारंभ ही दुख से होता है कि 3 प्रकार के दुख हैं। आध्यात्मिक दुख, जिसमें शारीरिक और मानसिक दुख जिसके अंदर आते हैं। आधिभौतिक और आधिदैविक। आधिभौतिक है अन्य प्राणियों से होने वाले दुख, और आधिदैविक है देवता आदि, ग्रह आदि से होने वाले दुख। इनके दुखों के कारण जब कोई पीड़ित होता है और होता चला जाता है, चीजों का प्रयोग करता है, उपाय करता है, लेकिन उससे एक स्थिर उससे दुख निवृत्ति नहीं हो पाती, आत्यंतिक ऐकांतिक दुख निवृत्ति नहीं हो पाती, तो जिज्ञासा होती है कि ऐसी दुख निवृत्ति किस प्रकार से की जाए, उसका उपाय क्या है, ठीक है। तो इस दुख, पहला तो इसी कारण से एक और चीज जो मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि दुख का भी बहुत बड़ा एक दुख की भूमिका है हमारे धर्म के पालन में, हमारे वैराग्य में और हमारे मोक्ष में। यदि दुख ना हो तो हमें जिज्ञासा भी नहीं होगी कि इसका दुख की निवृत्ति का उपाय करना कैसे, ठीक है। तो दुख हालांकि अनिष्ट वस्तु है, तब भी दुख यदि ना हो तब तक हम तो हवा में उड़ते रहेंगे, हमें नीचे विचार करने का, गहराई में जाने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। और जैसे मैंने पीछे कहा कि कर्ण या इंद्रियों की प्रवृत्ति किस लिए होती है? पुरुषार्थ के कारण से। तो यदि जो इंद्रियों की प्रवृत्ति है, इसका भी अगर आपको कारण समझ में आए कि ये अपना काम क्यों कर रही हैं, तो आपका दृष्टिकोण परिवर्तित होने से आप इनके प्रति इतना संग नहीं करोगे, इन्हें अपना काम करने दो, ठीक है। तो जितने कर्तव्य मात्र है उनका पालन आपका होगा। आप ओवर इंडल्ज, जिसको कहते हैं ना, ज्यादा संलग्न हो जाना, वो आप नहीं करें। और जैसे ही बोला, तत्र जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतनः पुरुषः तस्मात् दुखम स्वभावेन। तो यहां पर हालांकि पुरुष अपने आप में संपूर्ण है, कोई क्रिया करने लायक नहीं है, बिल्कुल बैठा सिर्फ स्वतंत्र है, पहले से ही मुक्त है वो, लेकिन उसे मुक्ति की भावना क्यों समाप्त होती है? क्योंकि वो भ्रम कर गया है, अपने आप को प्रकृति से मिला हुआ समझ रहा है या प्रकृति ही समझ रहा है। ऐसे भ्रम होने के कारण से वो ये सब करता रहता है। जब तक कि ये प्रकृति उसके समक्ष अपना रूप प्रकट नहीं कर देती, निवृत्त नहीं हो जाती, तब तक के लिए वो दुख अनुभव करता रहेगा। योग सूत्रों के अंदर भी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इत्यादि को क्लेश माना गया, जिसके अंदर राग द्वेष आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। राग क्या है? सुख अनुभव करने के बाद से पुनः सुख अनुभव करने की जो इच्छा है, वो राग कहलाती है।
और द्वेष है दुख अनुभव करने के बाद में दुख से दूर जाने की जो इच्छा है, ये द्वेष है। और मुख्य रूप से अगर आप ध्यान से देखें तो आपके सारे कर्म जो हैं वो इन्हीं दो चीजों के साथ में जुड़े हुए हैं। सुख हम पुनः अनुभव करना चाहते हैं और दुख से दूर भागना चाहते हैं। तो यदि हमें इनके मौलिक अवधारणा समझ में नहीं आएगी कि ये क्यों होते हैं, ये इनकी क्रियाएं क्यों हो रही हैं, इंद्रियां क्यों हैं, प्रकृति क्यों काम कर रही है, जगत कैसा है, ये सब है, तो हमारा जो ये मीटर लग रखा है कि यहाँ से सुख की प्राप्ति होगी, यहाँ से दुख की प्राप्ति होगी, तो दुख वाले से दूर जाना है, सुख के निकट जाना है, तो इस चक्र से हम बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये क्लोज सर्कल है। ठीक है, थोड़ा हम ये अगर ऐसे देखें तो ये स्पाइरल की तरह जो नीचे नीचे जाता है, तो वहां पर एक हम अधोगति हमारी शुरू हो जाएगी उसमें। तो उससे बाहर आने का तरीका ये है कि हमें समझ में आया कि ये हो किस लिए रहा है। तो सांख्य योग ये बताता है कि ये सब हो रहा है पुरुष की ही मोक्ष के लिए हो रहा है, ये इसी को संपन्न करने के लिए हो रहा है। तो अविद्या के बारे में जो ये कहा गया कि अविद्या क्या है, अनित्य में नित्य को जानना, जो वस्तु अनित्य है उसको कहना कि ये तो नित्य है। शरीर अनित्य है, हमें कहें कि शरीर तो नित्य होता है। जगत अनित्य है, जगत को कहें नित्य है, तो ये अविद्या है। अशुचि अशुद्ध है, अशुद्ध वस्तु को शुद्ध जानना। यहाँ पर व्यास भाष्य जो योग सूत्र पर बहुत पुराना भाष्य है, उसके अंदर क्या बोला गया है कि शरीर जिसको इतना स्वच्छ माना जाता है, जिससे इतना लगाव किया जाता है, वो मौलिक रूप से अशुद्ध है, क्योंकि उसमें शुद्धि डालनी पड़ती है ऊपर से, वो स्वभाव शुद्ध नहीं है। ठीक है, आत्मा या पुरुष जो है वो स्वभाव से ही शुद्ध है, तो ये इनमें भेद है। ऐसे ही दुख में सुख को जानना। ठीक है, जैसे पीछे न्याय वालों ने, न्याय वैशेषिक दर्शन ने सुख को भी दुख के पक्ष में डाल दिया। ठीक है, 21 प्रकार के दुख में एक प्रकार सुख भी है। ठीक है, वही बात यहां कर रहे हैं कि दुख वाली वस्तुओं में सुख को जानना। तो यहां पर कैसा आपको सुख प्राप्त होगा, वैसा जिसके लिए बहुत आपको यत्न करने पड़ेंगे। प्राप्त होने के बाद भी वो कब खत्म हो जाए हम नहीं कह सकते, कभी भी खत्म हो सकता है। ठीक है, और वो खत्म होगा ही होगा, क्योंकि अनित्य है। तो इस प्रकार से ऐसी चेष्टाएं करना कि दुख देने वाली वस्तुओं के पीछे जाना, ये सोच करके वो सुख देंगी। और ऐसे ही अनात्मा में आत्मा की बुद्धि रखना। जैसे ये शरीर है, ये क्या है, अनात्मा है, ये आत्मा नहीं है, लेकिन इसको आत्मा मानना, ये अविद्या है। और ऐसी अविद्या के कारण से ही सारी उल्टी चेष्टाएं शुरू होती हैं, जिससे हम बंधन में पड़ते चले जाते हैं। तो पीछे जो लिखा था कि सम्यक दर्शन संपन्न होने से कर्मों से बंधता नहीं है, वो इसलिए नहीं बंधता है क्योंकि उसको ये जो विवेक है, ये विभाग है उसके किए हुए, सफल रूप से वो इन विभागों को कर पाता है, हर क्षण में कर पाता है, या प्रायः तो कर पाता ही है, सामान्य रूप से कर लेता है। इसलिए जहां जहां बंधन बहुत जिसको जकड़ लेता है, वहां से वो मुक्त होने की चेष्टा करता है और निकल भी जाता है। क्योंकि बंधन असल में किस प्रकार का है, संयोगवश बंधन है। लेकिन अगर आप ये डिस्टेंस को पहचानने की, ये दो भिन्न वस्तुएं हैं, आत्मा का बंधन संभव नहीं है, और बंधन मुक्ति इत्यादि काम कहीं और हो रहे हैं, तो फिर बंधन होगा भी अगर, तो आप उसको अपने से दूर देख पाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ बातें कही गई हैं। विशेष रूप से मैं योग सूत्र व्यास भाष्य पहले पाद का 12वां जो सूत्र है उस पर भाष्य है। तो उन्होंने चित्त को नदी के रूप में बताया है कि चित्त कैसी है। चित्त नदी के रूप में अगर हम उसको कल्पना करें तो दो प्रकार से बहती है, एक कल्याण के लिए, दूसरी पाप के लिए। कल्याण का काम क्या है, आपको मुक्त कराना, सुख प्रदान, ऐसा सुख प्रदान करना जो नित्य हो, हमेशा के लिए चले। दूसरा है पाप प्रदान, पाप से दुख होता है। ठीक है, तो जो तो कैवल्य के प्रति उन्मुख है चित्त नदी, और विवेक के कारण से गंभीर होकर निम्न हुई है, वो कल्याण की तरफ प्रवाह करती है। जो संसार की तरफ उन्मुख है वो पाप की तरफ को बहती है, और उससे दुख की प्राप्ति इत्यादि जो अनिष्ट है उससे होते हैं। तत्र वैराग्येण विषय स्रोत खिलीक्रियत, विषय का जो स्रोत है, जहां से विषय निकलते हैं, वैराग्य के द्वारा उनको छोटा कर दिया जाता है। पहले वो बड़े होते हैं, उनको वहां छोटा किया जाता है। विवेक दर्शनाभ्यासेन विवेक स्रोत उद्घाट्यते, और विवेक दर्शन के अभ्यास से, विवेक दर्शन क्या है, यही अनित्य नित्य का, अविद्या विद्या का, सुख दुख का भेद कर पाना, अनात्मा आत्मा का भेद कर पाना, अशुचि शुचि का भेद कर पाना, ये विवेक है। तो जब ये विवेक ज्ञान होता है, जब ये पता लगता है पुरुष और प्रकृति ये अलग अलग चीजें हैं, ये एक नहीं है। ठीक है, तो उससे विवेक का जो द्वार है वो खुलता है, और इस प्रकार से चित्तवृत्ति का निरोध हो पाता है। ठीक है, तो ये बात यहां पर कही गई है।
और यहाँ पर एक चीज जो योग सूत्र व्यास भाष्य के पहले ही पाद के 16वें सूत्र में लिख रखी है, ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। ज्ञान या ज्ञान जब बढ़ता बढ़ता चला जाता है तो उसका जहां पर वो सबसे अपनी अत्यधिक अवस्था में पहुंच जाता है वहीं पर वैराग्य है। ठीक है, तो ज्ञान हमारे यहाँ पर वैराग्य का द्वार है, जिससे हम ये अपने जो क्रियाएं हैं वो समग्र रूप से कर पाते हैं। इसके बाद जो और भी सूक्ष्म दृष्टि जाती है वो जाती है अद्वैत वेदांत की ओर। ठीक है, वेदांत को मैंने डायरेक्टली नहीं लिया क्योंकि वेदांत में बहुत प्रकार है, मैंने एक प्रकार ले लिया है। अन्य दर्शनों का आप इसी प्रकार से वहां पर ये चीजें ढूंढ सकते हैं कि वहां पर अपने बारे में या आत्मा के बारे में या देह आदि के बारे में क्या बातें कही गई हैं, उसके अनुसार वहां भी मुख्य रूप से यही प्रयोजन है, अभ्युदय और निश्रेयस वाला। तो यहां पर भी आत्मा जो है वो देह इंद्रिय आदि वस्तुओं से भिन्न है, व्यतिरिक्त है और नित्य भी है, जिससे मैं देह हूं इस बात ऐसी जो भावनाएं हैं उसका खंडन हो जाता है। तो आप ये नोटिस करेंगे जितनी ये चीजें, जितने दर्शन पीछे हमने अभी डिस्कस किए हैं, अब मुख्य रूप से क्या हो रहा है कि मैं देह हूं इस भावना का वहां खंडन स्पष्ट रूप से है। और वो क्यों खंडन करना आवश्यक है? क्योंकि मुख्य रूप से हमारी राग और द्वेष के कारण से जो हमारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं अनवरत रूप से चल रही हैं, उनको उनको रोकना है, उनको पॉज करने के लिए, ताकि हम विचार कर सकें, इस भावना पे प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत आवश्यक है। कौन सी भावना? मैं देह हूं। ठीक है, हमारा जो अपने प्रेफरेंस, इसको बोलते हैं ना, हमारी रुचि किस विषय में है, किसमें हमारी अरुचि है, उसके कुछ जो कारण ये भावना भी है कि मैं देह हूं, इस कुल से हूं, इस स्थान पर हूं, मेरी ये आइडेंटिटी है, इस प्रकार से। तो वहां पर इस भावना का थोड़ा उसको शांत किया जाता है, तो खंडन करके आत्मा चेतन है, वह पारमार्थिक सत्य है, देह आदि जड़ समूह पारमार्थिक असत्य है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ये पारमार्थिक शब्द पर ध्यान देंगे। अद्वैत वेदांत के बारे में क्या है कि ये जी जगत कहते हैं, जगत है ही नहीं, ये शरीर है ही नहीं। ठीक है, जितना जड़ वस्तुएं हैं ये है ही नहीं, मिथ्या है। मिथ्या कहने का ये अर्थ है कि केवल व्यावहारिक स्तर पर ही है, पारमार्थिक स्तर पर नहीं। ठीक है, जैसे न्याय दर्शन के अंदर हमने एक बात कही कि जो वस्तुएं हमारे सामने दिख रही हैं ये कैसी हैं? परमाणुओं का संचय है, जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं। ये मेरे हाथ है, ये परमाणुओं का संचय है। ये मेरे सामने लैपटॉप है, परमाणु का संचय है। ये पुस्तक पढ़ी है, परमाणु का संचय है। तो इस प्रकार से हमें ये पता लगता है कि उसका अपना वैसा स्वरूप जो है वो पारमार्थिक नहीं है। मेरे हाथ का ये स्वरूप जो है ये पारमार्थिक नहीं है, फंडामेंटल ऐसा नहीं है मेरा हाथ। मेरा हाथ का जो फंडामेंटल या पारमार्थिक स्वरूप कुछ और है, मौलिक स्वरूप कुछ और है, दिखने में ऐसा है, प्रयोग में ऐसा है। ठीक है, ये भेद। जैसे स्क्रीन के आपके पिक्सल्स हैं, उसको आप और करीब जा जाके उसे मैग्नीफाई करके देखिए तो वहां पर कुछ और दिखेगा, ये नहीं दिखेगा जिस तरह से अभी दिख रहा है, एक डिस्टेंस से दिखता है। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि पारमार्थिक रूप से वो पिक्सल हैं, लेकिन दूर बैठ करके आप व्यवहारिक देखोगे तो वहां पर एक मुख दिखाई दे रहा है, एक हाथ हिलता दिखाई दे रहा है, कोई बोल रहा है, कोई चेहरा, ये इसका चेहरा या उसका चेहरा, ऐसे ऐसे आपको भावनाएं आएगी, तो वो व्यावहारिक है। तो वेदांत, अद्वैत वेदांत क्या कहता है कि व्यवहार के रूप में, व्यावहारिक स्तर पर जो ये स्तर है हमारा, यहाँ पर तो देह आदि जड़ समूह ठीक है, लेकिन पारमार्थिक रूप से ये असत्य है। ठीक है, और आत्मा क्या है? पारमार्थिक रूप से सत्य है। ठीक है, और जैसे पीछे कहा गया अन्य अन्य दर्शनों में भी, आत्मा चेतन है, बाकी सब जड़ है। ठीक है, उसमें चेतनता की कोई भी कोई उसमें गुण नहीं है। विषयों का भोग जो है वो स्वप्न की तरह अपारमार्थिक है। जैसे पीछे हमने कह ही दिया कि देह आदि जो जड़ समूह है ये पारमार्थिक असत्य है। तो जो हम अभी विषयों का भोग कर रहे हैं इंद्रियों के द्वारा, उनसे कुछ से संलग्न हो रहे हैं, कुछ से दूर भाग रहे हैं इत्यादि, वो कैसा है? वो स्वप्न में जैसे हम विषय भोग करते हैं, हमें प्रतीत होता है कि हम कर रहे हैं, भय, खुशी, ये सब जो होता है वो कैसा है? वो व्यावहारिक स्तर से भी नीचे है। तो उस कंपैरिजन में वैसा आपको एक उदाहरण के रूप में बताया जाता है, जैसे वो भी पारमार्थिक रूप से असत्य है, ये भी पारमार्थिक रूप से असत्य है। ठीक है, तो इसके प्रति जो आपका बहुत जो स्नेह है, जो जुड़ाव है, उसको यहाँ से तोड़ने का प्रयास किया जाता है। और केवल सिर्फ इतना नहीं, जितने भी पीछे शास्त्र कहे गए हैं वहां युक्तियां प्रदान की जाती हैं बताने के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत हैं जो केवल शास्त्र में श्रद्धा करके नहीं आएंगे, उन्हें युक्तियां देनी पड़ेंगी और युक्तियां दी भी जा सकती हैं। ठीक है, और आपको हर शास्त्र के अंदर यथोचित रूप से युक्तियां, तर्क, रीजनिंग ये मिल जाएगी इस इन सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए।
विषय भोग से प्राप्त सुख आदि भी अनित्य है। अपारमार्थिक कहने का अर्थ है कि वास्तविक रूप से वो अनित्य है। व्यवहार के स्तर पे तो सुख आदि भी अनित्य हो जाते हैं, आते और जाते, इनका यही काम लगा रहता है, तभी हमारी चेष्टाएं चलती रहती हैं। तो विषयों का भोग जो है, जो इंद्रियों के द्वारा कर रहे हैं, वो कैसा है? वो उससे प्राप्त होने वाला जो फल है, सुख आदि, ये सब अनित्य है। फिर आत्मा ही ब्रह्म है। ये बहुत गहरा सिद्धांत है, इसके ऊपर बहुत देर टिकेंगे नहीं हम, ठीक है। हालांकि इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, जो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, मैं ये हूं, ठीक है, मैं ये आत्मा हूं, ये भी इसमें थोड़ा सा टूट जाता है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी ब्रह्म के साथ जुड़ जाती है। चाहे वैचारिक स्तर पर ही हो, क्योंकि अनुभव करना बहुत आगे की बात है, लेकिन वहां पर यह काम होता है। आत्मा स्वयं नित्य सुख स्वरूप है, भ्रम से दुखानुभव होते हैं। आत्मा का अपना स्वरूप ही आनंद है, सुख है, और कैसा? नित्य, कभी ना टूटने वाला। लेकिन भ्रम से कैसा होता है? भ्रम से दुख का अनुभव हमें होता है। तो ये जब किसी को बताया जाए कि वो दुख जो है, तुम्हें इतना दुख हो रहा है, कि किसी भ्रम से, भ्रम क्या है? यही जो तुम अपने आप को देह मान रहे हो, इस जगत को पारमार्थिक रूप से सत्य मान रहे हो, इस प्रकार की जब युक्तियों से उसे समझाया जाएगा, तो उसका वो जो ऐंठन है, जो गांठ है, वो खुलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अनित्य अपारमार्थिक संसार से नित्य पारमार्थिक सुख को पाने की चेष्टा व्यर्थ है। संसार कैसा है? अनित्य है, अपारमार्थिक है। अब उसमें से अगर आप नित्य पारमार्थिक सुख पाने की चेष्टाएं करोगे तो वो व्यर्थ है, ठीक है। तो इसीलिए ये जब बताया जाएगा तो भी चेष्टाएं नियंत्रण में आती। और इनमें कुछ मुख्य सिद्धांत, जैसे एक है अवस्था त्रय सिद्धांत। अवस्था त्रय क्या है? जागृत, जिसमें अभी हम हैं, स्वप्न की अवस्था, जहां पर आपको सोने के बाद में कुछ चीजें दिखाई देती हैं, अनुभव होते हैं, और सुषुप्ति की अवस्था, जिसमें आप सोते हैं लेकिन आपको कुछ अनुभव नहीं होता, आप सीधे सो करके उठते हैं, डीप स्लीप जिसको कहते हैं, ड्रीमलेस स्लीप भी कह देते हैं। तो इस सिद्धांत के अंदर क्या है कि समस्त जगत, जिसको अन्य शास्त्र बहुत स्टडी करते हैं, उसको ये जागृत अवस्था के अंदर ही घुसा देते हैं कि ये इस अवस्था का जगत है। फिर स्वप्न की अवस्था का जगत अलग, उसके अंदर दिखा और वहीं समाप्त हो गया। ऐसे ही जागृत अवस्था का जगत भी यहीं पर आकर यहीं समाप्त हो जाता है, इसी के अंदर लीन हो जाता है। तो अवस्थाओं से बाहर भी जो जगत की अत्यंत कल्पना की जाती है कि ये पारमार्थिक जगत है, उसको भी उसमें भी कंपन पैदा करके उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। और ऐसे ही अध्यारोप और अपवाद का एक प्रकार है। अध्यारोप में जिसको हम आगे पढ़ते हैं, कि अध्यारोप में क्या किया जाता है, ये बताया जाता है कि ब्रह्म जो है, जो पारमार्थिक सत्य है, ये समस्त संसार का आधार है, और आधार होने के कारण से इसके ऊपर ही समस्त जगत का आरोप हुआ है। ब्रह्म तो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है, इंद्रियातीत विषय है, लेकिन इनके उस एक आधार के ऊपर, उस नित्य चेतन आधार के ऊपर, अज्ञान के कारण से अज्ञान ऊपर आ गया है, और उसने वहां पर ये जगत की एक रचना, ये कल्पना करती है, ठीक है। ऐसा वहां पर अध्यारोप की प्रक्रिया में बताया जाता है और विवेक करवाया जाता है कि जहां जहां तुम्हें असत्य दिखाई दे रहा है, ये जगत का भान हो रहा है, वहां वहां ब्रह्म को आधार के रूप में देखो और विवेक करो, ठीक है। और इसी प्रकार से जो अपवाद की प्रक्रिया है, उसमें पहले तो भेद कर दिया, द्वैत उत्पन्न कर दिया कि ये अज्ञान और ब्रह्म, ये अवस्तु और वस्तु, ये अलग हो गया। और उसके बाद में क्या कहा जाता है कि अवस्तु का अपना कोई स्वभाव नहीं है, जो मिथ्या है, जो झूठ है, उसका अपना स्वभाव क्या होगा। और अपना स्वभाव ना होने के कारण से जिसका अपना स्वभाव है, यानी ब्रह्म, स्वभाव, अपना अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व, तो स्वतंत्र अस्तित्व सत्य का होता है, असत्य का नहीं होता। असत्य को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, असत्य को अब यूं कह लो, सत्य को ही तोड़ मड़ोड़ करके बनाया जाता है, और इसी कारण से उसको उसकी आवश्यकता पड़ती है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं बन सकता। एक सत्य कहीं होता है जिसको छुपाने के लिए सत्य की कल्पना की जाती है, असत्य उत्पन्न होता है या असत्य को बनाया जाता है, गढ़ा जाता है। तो इसी कारण से यदि ये जो जगत है, ये पारमार्थिक असत्य है, तो पारमार्थिक सत्य कुछ और है, और साथ में जो ये पारमार्थिक असत्य जगत है, ये स्वतंत्र ना होने के कारण से, किसी आधार के पे होने के कारण से आधार मात्र ही हो जाता है, यानी ये ब्रह्म मात्र ही हो जाएगा, उससे अलग इसे हम नहीं कह सकते। कैसे? जैसे रस सांप दिखने की प्रक्रिया को बहुत वेदांत में बताया जाता है बार बार। तो आपको अगर रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है, तो यदि वो सांप स्वतंत्र रूप से विद्यमान है तो सांप हुआ, वो असली सांप हुआ, वास्तविक सर्प हुआ। लेकिन अगर रस्सी में दिखाई दे रहा है और वो असत्य है, इसका अर्थ है वो वास्तविक रूप से केवल रस्सी रस्सी ही है, ठीक है, सांप का तो केवल भ्रम हो रहा है। इसी प्रकार से ये समस्त जगत जो है, ये वास्तविक रूप से ब्रह्म मात्र ही है। तो सर्वम खलविदम ब्रह्म आदि जो वाक्य आते हैं,
उसके अंदर यही बात कही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये वस्तु ब्रह्म है, यानी वास्तविक केवल ब्रह्म है। बाकी सब जो अज्ञान आदि जड़ समूह है ये अवस्तु है, असत्य है। तो जगत को असत्य बोल करके आपका जो उससे गांठ है, जो स्नेह है, उसको तोड़ने का प्रयास होता है। और जो जिस जगत के पीछे आप इतना जिससे जुड़ रखे हैं वो कहां से उत्पन्न हुआ है? अज्ञान से। अज्ञान की शक्ति है जिसको विक्षेप शक्ति कहते हैं। ये आत्मा को ढक करके उसके ऊपर आकाश आदि तत्वों का और तत्वों से आगे आगे जो प्रपंच बनता है, जिसमें अभी भी हम घिरे हुए हैं, उस प्रपंच को रचता है। और साथ में ब्रह्म से अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं जो स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो, जो अपने आप में विद्यमान हो, किसी के आश्रय पे ना हो, वो ब्रह्म ही है। और साथ में सबसे आवश्यक, इसको परम पुरुषार्थ के लिए क्यों इसका प्रयोग है? क्योंकि जो बाकी पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम, इनकी प्राप्ति जो है वो अनित्य होती है। ये आते हैं, ये प्राप्त होते हैं, लेकिन एक के बाद एक समय आने के बाद ये क्षीण हो जाएंगे। इनके जो फल हैं वो क्षीण हो जाएंगे। तो मोक्ष ही परम पुरुषार्थ क्यों है? क्योंकि एक श्रुति हमें वाक्य मिलता है, न स पुनरावर्तते। वो जिसका मोक्ष होता है वो वापस इस संसरण के प्रक्रिया में नहीं पड़ता। और जो बाकी है तो उसमें एक श्रुति वाक्य का उदाहरण दिया जाता है, तद यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते इत्यादि श्रुत्या अनित्यत्वावगमात्। तो जिस प्रकार इस जगत में जो कर्म से प्राप्त की गई वस्तु हैं उनका क्षय हो जाता है, इसी प्रकार से परलोक आदि में भी, स्वर्ग आदि में भी जो आप कर्म से प्राप्त करोगे उसका भी क्षय हो जाएगा। तो इसी कारण से यहाँ का जो चेष्टा से होने वाले फल हैं और परलोक की चेष्टा से होने वाले फल हैं, वो सब के सब कैसे हैं? वो अनित्य हैं। तो वहां जाके भी आपको चैन नहीं आएगा, आप वापस से घूम फिर करके यहीं आओगे। तो नित्य सुख की प्राप्ति कैसे होगी? वो मोक्ष के द्वार से होगी, परम पुरुषार्थ है। और वो इसी प्रकार से होगी, वो इन चेष्टाओं में पड़ने से नहीं होगी जिन चेष्टाओं में हम पड़ रखे हैं। ठीक। और साथ ही जैसे मैंने अवस्था त्रय आदि की बात की थी कि समस्त जो हमारा राग को पोषित करने का या द्वेष के जो भावना है उसको शांत करने का जो हमारी क्रिया होती है, वो किस कारण से है? कि हम कार्य कारण भाव में विश्वास रखते हैं। कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन, लॉ ऑफ कॉजेशन जिसको कहते हैं, ये सारा का सारा कहाँ है? ये मांडू के कार्य का जो शांकर भाष्य है उस पर आनंद गिरी टीका में और शांकर भाष्य के अंदर भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये कहाँ तक काम करता है। ये जागृत अवस्था, ये अवस्था जो तीन अवस्थाएं हैं इन्हीं तक सिमटा हुआ है, इनसे बाहर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कार्य कारण भाव को भी पारमार्थिक होने से रोक दिया। ठीक है, तो आपकी हमारी पारमार्थिक सत्य के बारे में जो अवधारणा है, जिसके कारण से हम हमेशा क्रियाओं में प्रतिक्रियाओं में घूमते चले जाते हैं, उसको रोकने के लिए वस्तुतः भी बात बताई जा रही है और आपके कल्याण के लिए भी ऐसे उपदेश उसमें वेदांत में किए गए हैं। ठीक है, अब दर्शन शास्त्रों की जो समानता है, ठीक है, कहाँ कहाँ इनकी समानता हमें देखने को मिली। हालांकि इनके जो प्रकार हैं बताने के, जिस प्रकार से आत्मा का या पुरुष का, जैसे न्याय वैशेषिक क्या कहेंगे कि जो आत्मा है वो सगुण है, उसमें बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष इत्यादि उसके गुण हैं जो आते जाते रहते हैं। अद्वैत वेदांत कहेगा नहीं जी ये निर्गुण है, इसमें कोई गुण ही नहीं है, ये मन के हैं, जो राग द्वेष इत्यादि ये मन की चीज है। तो जैसा भी हो, लेकिन इनमें कुछ मुख्य बातें हैं जो समान है, वो मैं यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ। पहला, प्रतीति में और अस्तित्व में भेद है। वस्तुएं या ये जो समस्त जगत है, इसके जितने भी अवयव हैं या हिस्से हैं, वो जैसे प्रतीत होते हैं, जैसे ज्ञात होते हैं, ये आवश्यक नहीं है वो वैसे हैं भी, वो वैसे ही विद्यमान है, हम ये नहीं कह सकते। तो यहाँ पर एक दरार पैदा, एक क्रैक पैदा किया जाता है इन दो बातों में, कि हम देखने पर बहुत विश्वास रखते हैं कि हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पर कहते हैं जो देखा है आवश्यक नहीं है कि वो वैसा हो भी। ठीक है, तो वहां पर परीक्षण की प्रेरणा हमें मिलती है कि आप परीक्षण कीजिए। और कुछ चीजें जब शास्त्र स्पष्ट रूप से सामने अपनी युक्तियों से प्रस्तुत कर देता है, चाहे हमें शास्त्र के जो वेद के उपदेशों में या महर्षियों के उपदेशों में विश्वास ना हो, जब युक्तियों से आपके सामने उसे रख दिया जाएगा और आपके ही जीवन से उदाहरण दे दिए जाएंगे, तो फिर क्या होगा? आपकी प्रवृत्ति ही बनेगी, आपको शंका हो जाएगी कि मैं कहीं गलत जा रहा हूं। जैसे बचपन में हमारी जो अवधारणाएं थी वस्तुओं के बारे में कि ये चीज ऐसी होती है, ये ऐसी होती है, ये ऐसी होती है, जिसके अनुसार हम क्रियाएं करते थे। आप आज वापस स्मरण करके देखिए कितना अंतर है उसमें।
और उस दृष्टिकोण के भेद से ही हमारी कई वस्तुओं में जो हम इतने संलग्न थे उससे हम आज विरक्त हो चुके हैं। तो इसी प्रकार, और साथ में पहले की जो हमने अपनी जजमेंट में, जो अपनी कल्पनाओं में, निर्णयों में गलतियां की हैं, उसकी वजह से सीख करके आज हम अपने निर्णय उस तरह से ना करके अन्य प्रकार से कर रहे हैं। और ऐसे ही हम आज भी उसे पहले के तुलना में उसका शोध करते करते उसे इम्प्रूव कर रहे हैं। इस कारण से एक बात स्पष्ट होती है कि परीक्षण की जो प्रेरणा आती है उससे, और ये जो हमारे भावना है कि कुछ बीच में गड़बड़ है, इंद्रियां जो हैं वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है, हमारे बुद्धि भी कई बार धोखा दे जाती है, और हमारे जो, जिसका हम इंट्यूशन कहते हैं, कि हमारा आभास हमें हो जाता है कि ये ऐसा है, उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। तो हम परीक्षा कर लें तो ज्यादा ठीक है। और परीक्षा क्यों होती है? कि जो चीजें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक ही है, जैसे ये हाथ, मैं कहूँ हाथ है, लेकिन खोल कर देखा जाए तो इसमें उंगलियां हैं, अंदर अंदर कुछ उपकरण बन रखे हैं, तो ये विवेक हो गया। तो जिसे मैं हाथ एक यूनिट मान रहा हूं कि ये एक ही वस्तु है, उसके अंदर भी कई कई चीजें हैं। ठीक है। तो ऐसे ही जैसे अगर पुरुष और प्रकृति एक ही बात हो गई, जी मैं शरीर हूं, ये मान लिया, ऐसे ही मैं न्याय वैशेषिक में मानना कि शरीर ही मैं हूं। इसी प्रकार से अद्वैत वेदांत में कहा कि ये जड़ समूह है, ये मैं हूं, ये शरीर मैं हूं। ये जो अविवेक हो गया, दो भिन्न वस्तुएं एक जैसी होकर लग रही हैं, इसको तोड़ने के लिए परीक्षण करना पड़ेगा। तो परीक्षण का काम है बिल्कुल जो आपस में जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, जो एक लग रही हैं कि ये एक ही वस्तु है, उसको तोड़ करके देखें। जब ये डिस्टेंस, इनमें ये फर्क आएगा, तब हमें दृष्टि हमारी पहले से सुदृढ़ होती है और ठीक होती है, और सम्यक दर्शन संपन्न होने से हम कर्मों के बंधन में नहीं बंधते। और यहाँ पर इसी कारण से मैं यहाँ पर युक्तियों का प्रयोग बहुत है। आप पुराने ये ग्रंथ आप देखें, जिसमें पूर्व पक्ष का डिस्कशन होता है, उत्तर पक्ष का डिस्कशन होता है, उससे भी आगे बढ़ा जाता है। तो वहां पर युक्तियों से भी बातें सिद्ध की जा सकती हैं, तो आपका वो जो इंटेलेक्चुअल माइंड है वो भी अच्छे से स्थिर होता है। दोष दृष्टि इसमें तीक्ष्ण होती है। ठीक है। जैसे आप परीक्षा करते चले जाएंगे तो आपको पहले अपने ही दोष नजर आएंगे, फिर अन्यों के भी आएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप उनको धुतकारने लग जाएंगे, उनसे दूर भागेंगे, लेकिन आपका जो लगाव था उनसे वो कम हो जाएगा, और सार प्राप्ति की प्रवृत्ति होगी। आप सार के प्रति भागेंगे कि हमें अब कुछ सार चाहिए वस्तुओं के अंदर। ठीक है। अब कुछ तत्व ज्ञान और वैराग्य के बारे में कुछ मुख्य बिंदु जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर तत्व ज्ञान की अवधारणा क्या है। ठीक है। एक एक पॉइंट नहीं पढ़ूंगा, मुख्य चीजें हैं कि तत्व ज्ञान की यहाँ अवधारणा यह है कि तत्व ज्ञान से हमारा लगाव ना होकर के हमारा छुटकारा होता है। हम आमतौर पे ज्ञान को लेते हैं कि हम इंटेलेक्चुअली अपने आप को इतना इक्विप कर लें, भर लें, कि जहां हमसे जो चीज पूछी जाए हम उसका फटाक से जवाब दे सकें, फटाफट से जवाब दे सकें, बिल्कुल सटीक सही जवाब दे सकें, और उससे हमारी प्रशंसा हो, हमें कीर्ति प्राप्त हो इत्यादि। लेकिन यहाँ जो ज्ञान की बात की जा रही है वो इन बंधनों से मुक्त करने के लिए की जा रही है। तो जब तक तो ये भावना बन रखी है कि हाँ अब मुझे ये कहीं प्रदर्शित करके कीर्ति आदि करना है, तब तक अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी बहुत आगे सोपान या सीढ़ियां चढ़नी बाकी। ठीक है। अब तत्व ज्ञान से क्या होता है, विषय दोष दिखाई देते हैं, विषय दोष दर्शन होता है, और फिर उन विषयों के प्रति जो हमारा लगाव है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है। जब लगाव कम होगा तो हम इंद्रियों के प्रति भी उतने आसक्त नहीं होंगे कि इस इंद्रियों को हमने पूरा भोग करवाना है, इसके विषय को लेकर के उसे भोगना है और इसको इस विषय में लगाई रखना है। हमें पूरी अपनी इच्छाओं को पूरा करना आवश्यक है ताकि हम सुखी रह सके, शांत रह सके। ऐसी जो भावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है। और केवल लोक यात्रा के लिए, कर्तव्य पालन के लिए कर्म करने की हमें प्रेरणा मिलती है, जो भगवत गीता आदि में भी बहुत, और अन्य शास्त्रों में भी हमें बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है, हमारी जो इच्छाएं हैं उसको नियमित ढंग से भोगने का विधान है, जिससे हमें मदद मिलती है इन कामों को करने से। अगर हम अब सिर्फ अपने मर्जी से करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार करेंगे कि हाँ अपने लिए नियम बना लिया, तो हम कभी छोड़ भी सकते हैं। जब हमें उपदेश का सहारा लेकर के, अपने आचार्य का या किसी शास्त्र का सहारा लेकर के करते हैं, यथाधिकार अधिकारानुसार और विधि आदि के अनुसार, अपनी अवस्था के अनुसार, तो हम उसमें जुड़े रह सकते हैं, उसमें श्रद्धा बनी रहती है। इसी कारण से शास्त्रों में श्रद्धा होनी ये एक बहुत ही केंद्रीय वस्तु है। इसका जब तक श्रद्धा नहीं होगी हम इसमें प्रवृत्त नहीं हो सकते। संसार स्वभावतः दुख है, ये जान करके जो ये सारा वक्त जो हम भय और त्रास में पड़े रहते हैं, इससे हमारा छुटकारा हो जाता है, जिससे हम व्यर्थ की जो क्रियाएं हम वो नहीं करते। स्थायी सुख की खोज में भी हम बहुत व्यर्थ चेष्टाएं करते हैं, उससे भी हम बचेंगे इस तत्व ज्ञान के द्वारा।
और साथ में इससे एक मध्यस्थता प्राप्त होती है। हम एक न्यूट्रलिटी जिसको हम कहते हैं कि हम एक स्थान पर खड़े होके हम हर हिस्से को देख पाएंगे, जज कर पाएंगे। हम जब तक राग द्वेष के चक्कर में पड़े हैं तब तक हमारे जो निर्णय हैं वो पक्षपाती होंगे ही होंगे, उससे हम बच नहीं सकते। ठीक है। और यहाँ पर विशेष रूप से जो देह के प्रति आत्मत्व का अभिमान है कि मैं ही देह हूं, इसको कॉन्स्टेंटली हर दर्शन जो है उसको चैलेंज कर रहा है, उसे रोक रहा है, उपदेश दे रहा है कि आत्मा या तुम जो हो वो अलग हो और ये जो शरीर है इत्यादि ये सब भिन्न वस्तुएं हैं। जिससे जब विषय दोष दृष्टि अनात्म वस्तुओं पे आ जाती है कि अनात्मा जितनी ये जड़ वस्तुएं इनके प्रति दोष दृष्टि आएगी, तो आत्मा जो कि एक स्थिर नित्य निर्दोष तत्व है इसके प्रति भी आपकी जिज्ञासा बढ़ती है तत्व ज्ञान के द्वारा। फिर मोक्ष के उपायों का अनुष्ठान होता है। फिर जो अन्य अन्य जो भी यथाधिकार चीजें हैं उनका अनुष्ठान किया जाता है। अतः किसी ना किसी आस्तिक शास्त्र का सहारा लेना आवश्यक और लाभदायक है। आस्तिक यानी वेद के अनुसार जो शास्त्र हमारे चलते हैं। और इतिहास पुराण आदि के श्रवण अध्ययन से भी वैराग्य व ज्ञान की उत्पत्ति बताई गई है। इसमें एक चीज मैं जोड़ूंगा जो मेरा अपना एक अनुभव रहा है। शास्त्र के अध्ययन से भी एक वैराग्य की भावना आती है। तो दोष दृष्टि केवल अन्य विषयों पर नहीं, कुछ शास्त्रीय विषयों से भी आपको हो जाता है, शास्त्रीय प्रक्रिया से भी हो जाता है। कैसे? वाक्य पदीय का एक जो भर्तृहरि की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है, उसमें ये पहला श्लोक जो मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, इसमें क्या बताया गया कि एक वस्तु जिसका अनुमान आदि प्रमाणों से बहुत प्रयत्न से हमने निर्णय किया, वो अन्य जो लोग हैं, अन्य विद्वान हैं जो इससे भी आगे पहुंचे हुए हैं, वो और आके अन्य प्रकार से उसकी अवधारणा प्रस्तुत कर देते हैं, अन्य तर्कों से, अन्य युक्तियों से, और ये चक्र चलता चला जाता है। और ऐसा चक्र चलने पर क्या होता है, युक्ति युद्ध जिसको हम कहते हैं कि वो चलता चला जाता है, उसका कभी अंत हमें नहीं होता। और जब आप उसका देखते चले जाते हैं, जैसे मैंने खंडन के ग्रंथ पे काम किया है अपने शोध प्रबंध या पीएचडी थीसिस के लिए, तो उस पे आपका एक उसके प्रति भी वैराग्य हो जाता है कि इतना बौद्धिक प्रक्रिया जो है वो भी दुख का कारण बनती है, ऐसा एक भावना मन में आती है। और ऐसे ही खंडन उद्धार वाचस्पति मिश्र द्वितीय का ग्रंथ है, वहां पर क्या लिखा है, तर्क कांतारचारण्य स्खलंति प्रायशो गिरा। तर्क रूपी वन में घूमते हुए सामान्य ऐसा कई बार हो जाता है कि आपका जो वचन है वो स्खलित हो जाता है, भाषा जो आपके वचन है वो खराब हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, छटपटा जाते हैं। तो उसका समाधान विद्वान आके करते हैं। ये सनातन धर्म की या ऐसा होता आया है, विद्वान ऐसे ही करते हैं। तो यानी जो बहुत ही विद्वान भी हैं उनका भी वाक स्खलन इत्यादि या सिद्धांत स्खलन हो जाता है। इस कारण से जो ये युक्ति युद्ध है, पूर्व पक्ष सिद्धांत पक्ष का उत्तर पक्ष का जो शास्त्र में आपको पढ़ने को मिलेगा, उसके प्रति भी वैराग्य आ जाता है। जिस पर आदि शंकराचार्य का बहुत अच्छा एक श्लोक है, विवदत् स्वेव निक्षिप्य विरोधोद्भव कारणम तई संरक्षित सद्बुद्धि सुखम निर्वाति वेद। जो विवाद कर रहे हैं उन्हीं में उनके विरोध के जो कारण है उनको उसमें निक्षेप करके, उनमें रख करके, छोड़ करके अपने आप को, अपनी बुद्धि को संरक्षित करके जो वेदवित है, वेद का ज्ञाता है, उस सुख से छुटकारा प्राप्त करे, सुख में रहे। ठीक है। तो इस प्रकार से इससे भी है। फिर मोक्षोपाय की जैसे मैंने बात की है, पहले मोक्ष प्राप्ति की योग्य बनने की बात जैसे मैंने पीछे कहा, और फिर साक्षात उपाय क्या है मोक्ष का, वो है आत्मज्ञान। सर्वेषामपि चैतेषाम आत्मज्ञानम परम स्मृतम तद्ध्यग्र्यम सर्व विद्यानाम प्राप्यते ह्यमृतम ततः। ये मनुस्मृति का वचन है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, आत्मज्ञान सभी विद्याओं का शिरोमणि है और इसी कारण से इसी के द्वारा अमृत की या मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। और यहाँ पर महाभारत में महर्षि याज्ञवल्क्य का वचन बताया गया है जिसको मैं उद्धृत करता हूँ, जहां पर क्या कहा गया है, ज्ञानान मोक्षो जायते राजसिंह नास्त्यज्ञानादेव माहुर नरेंद्र तस्मात् ज्ञानं तत्त्वतोऽन्वेषितव्यम येन आत्मानं मोक्षयेत् जन्म मृत्योः। ज्ञान से ही मोक्ष होता है, अज्ञान से नहीं होता। तो अज्ञान का सहारा छोड़ के ज्ञान लीजिए, और ज्ञान जो है वो तत्व से उसका अन्वेषण करना चाहिए, मौलिक अन्वेषण उसका करना चाहिए, जिससे आत्मा को, अपने आप को जन्म और मृत्यु के बंधन से छुड़ाया जा सके। अगला वचन बहुत जरूरी है, प्राप्य ज्ञानम ब्राह्मणात् क्षत्रियाद्वा वैश्यात् शूद्रादपि नीचाद् अभीक्षणम श्रद्धातव्यम श्रद्धानेन नित्यम न श्रद्धिनम जन्म मृत्यु विषेताम। ज्ञान कहीं से भी ले, ऐसा जो ज्ञान है
मोक्ष प्रदायक ज्ञान है, इसको कहीं से भी, ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से, शूद्र से या किसी अन्य से भी ले, इसके पाठ भेद में ये पंचमी विभक्ति हटाकर भी कहा गया है कि चाहे वो ज्ञान ब्राह्मण ले, क्षत्रिय ले, कोई भी ले, ऐसा ज्ञान लेने से क्या है, उसमें ज्ञान लेने पर फिर श्रद्धा करे और श्रद्धा करने पर जन्म मृत्यु से वो पार होगा, अन्यथा नहीं होगा। और यहाँ पर ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है कि ज्ञान जो आत्मज्ञान है उसके अधिकारी सभी हैं। इसी कारण से व्यास जी का भी वचन जो पीछे उद्धृत किया था, वहां आत्मज्ञान को सामान्य धर्म में रखा गया है, सभी को लेना है ताकि सभी अपने अपने धर्म का सही से पालन कर सकें। इसी कारण से आत्मज्ञान देने के जितने स्रोत हैं, चाहे वो शास्त्र हो, इतिहास पुराण आदि हो या लौकिक ग्रंथ हो जो उनके आश्रय पर बने हैं, उनका सहारा लेकर के या अच्छे जो वेद ज्ञाता, शास्त्र ज्ञाता गुरु हैं उनका आश्रय लेकर के ऐसा ज्ञान सभी को प्राप्त करना चाहिए। उपसंहार, अब समय हमारा हो रहा है, तो उपसंहार में क्या है कि धर्म शास्त्रोक्त सभी धर्मों का आधार सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म क्यों? क्योंकि इनकी अनुवृत्ति या इनको करने का काम हमें लगातार विशेष धर्मों के साथ साथ भी करना चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जिसको कहते हैं, कम से कम हमें क्या करना हो, तो हमें सामान्य धर्मों का पालन करना चाहिए। और सामान्य धर्मों में भी सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय निग्रह है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का जब तक निग्रह नहीं होगा तब तक अन्य जो सामान्य धर्म है, बाकी ये विशेष धर्म छोड़िए, अन्य सामान्य धर्मों का भी पालन पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। इंद्रिय निग्रह के जो उपाय हैं उसमें सबसे जो उत्तम उपाय है वो ज्ञान है, जो कि विषय दोष दृष्टि के रूप वाला है। और विषय दोष दृष्टि की उत्पत्ति के लिए दर्शन शास्त्र जो है वो उपकारक है, सहायक है। सभी दर्शन शास्त्र व्यवहारिक जगत का परीक्षण करते हैं तथा परीक्षण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। विषय दोष दृष्टि द्वारा विषयों से वैराग्य होने लगता है तथा निर्दोष तत्व की जिज्ञासा भी होने लगती है। यह जिज्ञासा होने पर मनुष्य उस तत्व के ज्ञान के लिए उपायों का अनुष्ठान करता है। यदि किसी अन्य जो पुरातन आपका कोई पाप कर्म है, कोई दुरित है, कोई बाधा है, यदि वो ना हो तो उसे उस तत्व का ज्ञान भी हो जाता है, जिससे मोक्ष भी प्राप्त होता है। महर्षि व्यास द्वारा आत्मज्ञान को सामान्य धर्म कहा जाने से दर्शन शास्त्र अत्यंत उपकारक है। और साथ में इस ज्ञान के सभी अधिकारी हैं, जितने मनुष्य मात्र है जो सामान्य धर्मों का पालन करना चाहता है वो आत्मज्ञान का भी अधिकारी हो जाता है। दर्शन शास्त्र धर्म के यथोचित पालन करने में और मोक्ष का मार्ग खोलने द्वारा धर्म शास्त्रों व मनुष्यों का के उत्तम सहायक है। यदि धर्म का पूरा पालन करना है यथोचित ढंग से और मोक्ष का मार्ग खोलना है तो उसमें जो दर्शन शास्त्र हैं ये उपकारक के या सहायक के रूप में प्रतिष्ठित है। वेद आदि शास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखकर यथासंभव, यथाधिकार, यथाविधि उनके उपदेश के अनुसार चलने में हम सबका कल्याण है। इसी कारण से ये सारी जितनी प्रक्रिया जो हमने कल डिस्कस की, जो आज डिस्कस की है, जो जिसका व्याख्यान हुआ है, ये प्रक्रिया का अनुष्ठान भी तभी संभव है जब हमें इन शास्त्रों में, वेदों में और इनके उपदेशों में श्रद्धा हो। यदि श्रद्धा ही नहीं है, हम ये उपक्रम करेंगे क्यों? इसी कारण से पहले इनमें श्रद्धा स्थापित करना, जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, और उसके बाद में इनके उपदेशों का पालन करते हुए आत्म कल्याण करना। ये हमारे कल्याण के लिए, हम पर दबदबा बनाने के लिए नहीं है, ये शास्त्र हमारे कल्याण के लिए है। इस दृष्टि से हम इनका पालन करें, इनमें श्रद्धा रखें। और श्रद्धा को परम तप कहा गया है बहुत सारे स्थानों पर। क्यों? क्योंकि श्रद्धा टूटती बहुत जल्दी है, इसीलिए श्रद्धा में भी हमें काम करना है कि हम श्रद्धा बनाए रखें। जो इतिहास पुराण की कथाएं हैं जिनमें श्रद्धा को सुदृढ़ करने के लिए भी कथाएं बताई जाती हैं, उन कथाओं का श्रवण करें, आचार्यों के उपदेश सुने। बहुत आचार्य, वेदों के विद्वान, इतिहास पुराण आदि के विद्वान आचार्य हैं, उनकी कथाएं हम सुने, उनके उपदेश सुने, जिससे भी हम सुदृढ़ हों। तो इस दौरान जब भी हम उपाय करें, श्रद्धा के प्रति जाएं, शास्त्रों का उपदेश सुने, तब हमें ये जो साधु हैं या शास्त्र के ज्ञाता लोग हैं, इनका भी संग हमें रखना चाहिए, इनसे वार्तालाप करने चाहिए, ताकि हमारी जो वृत्ति है वो टूटे मत। ठीक है? और साथ में नाम जप करना, नाम स्मरण करना, ईश्वर स्मरण करना, इसका भी हम करें। स्तोत्र आदि का पाठ करें, अर्थ सहित पाठ करें, जिससे हमारा वृत्ति बनी रहे। तो जितनी उपाय हम वृत्ति को बनाने में कर सकते हैं वो करें, साथ में इन उपायों को करें। तो मैं शास्त्र के विश्वास पर विश्वास रख के कह सकता हूं कि हमारा कल्याण अवश्य होगा। तो अब मैं इसके साथ सभी जो धर्म के अनुरागी जन हैं, धर्म का पालन करते हैं, धर्म के प्रति वृत्ति रखते हैं
उन सबको धन्यवाद करता हुआ, ईश्वर को धन्यवाद करता हुआ और इंडिका मोक्ष को धन्यवाद करता हुआ अपने व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सत्यन। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था एंड कल और आज जो क्लैरिटी ये व्याख्या में हुई है, आई थिंक बहुत कम ऐसा व्याख्या है जहाँ पे दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों का कहाँ महत्व है एंड हाउ दे आर कनेक्टेड, इंटर रिलेटेड, हाउ टू सी देम। वी आर वेल बियॉन्ड टाइम, सो आज अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चंस Q&A के लिए टाइम नहीं है। लेकिन मैं यही आई वांट टू रिपीट दिस दैट एक दृष्टि, it's a prevalent view today that if you are studying Vedanta, then karma is not needed, Dharma Shastra is not needed. At the same time, some focus too much on Dharma Shastra and perhaps sideline the Darshana Shastra, sideline the pursuit of moksha. But your presentation has shown how they go hand in hand. While moksha is the ultimate goal of life, but even in the practice of dharma, that indriya nigraha and all, clarity, that jnana has to be there. So thank you very much on the behalf of our Indika Moksha and all our viewers. Sri Guru Bhyo Namaha. श्री गुरु कृपा।